अच्छा, अभी अभी 9 पार्टिसिपेंट अब बस 1 मिनट लेके जरा पार्टिसिपेंट सारे आ जाएं इसमें। आराम से आराम से। चालू करें श्याम जी? ठीक है। हाँ जी। Good evening, friends. I welcome CA Pramod Jain sir, Central Council member, and guest speakers of the today's webinar. Friends, this is the fifth VCM of Vikas Mark CHV Circle in this calendar year of 2021 for 2 CP hours and cumulative 11 CP hours till date in this calendar year of 2021. Friends, the technical session will be deliberated on detailed discussions on assessment under section 147, read with section 148, and important changes in Finance Act 2021. And this session will be delivered by CA Pramod Jain sir, well-known speaker and expert on the subject. Friend, I request JP Agrawal ji, convener of this study circle, for welcome address and to proceed further. Thank you. Thank you, Shyam ji. Thank you. Good evening, friends. I would like to welcome all of you to this very fifth virtual CP meeting of this calendar year 2021 with total CP 11 hours. Hope everyone is safe and fine with the family at home in this pandemic situation. I welcome our Central Council member CA Pramod Jain ji, a well-known dynamic expert on the subject, guest speaker of today's virtual CP meeting. In this technical session, CA Pramod Jain ji will discuss on assessment under section 147, read with section 148, and imported changes in Finance Act 2021 to the time available. We are very thankful to CA Pramod Jain ji, today's speaker, for giving his valuable time to the members of our study circle who gave his kind consent for our program in spite of their busy schedule. Friends, before starting the webinar, uh, I like to inform everyone but I would like to inform that our very old member of this study circle, Sri Ram Bhuvnesh ji, has 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 gone to heaven, and his daughter Arpita Bhuvnesh also gone to heaven. So this is very uh, sad to our study circle and everybody. Or even though our many people in our CA fraternity have also gone to heaven, so I would like to give them peace for 1 minute, keeping silence. So please uh, give them condolence for 1 minute silence. Om Shanti. Shanti. Thank you. Friends, before handing over the desk to CA Pramod Jain ji, I take privilege to introduce him.
Pramod Jain ji, he is senior partner of Messrs Lunawat and Company, Chartered Accountant in Delhi. Pramod Jain ji is commerce graduate from SRCC. He is FCA, FCS, FCMA, LLB, Information System Auditor, DSAP, ICAI. He is member of All India Management Association, MIMA. He is an insolvency professional, IP. He has also passed the proficiency self-assessment test for independent directors data bank, certification course NCFM of National Stock Exchange of India, NSE. He has also done certification course of CAT of ICAI, post qualification certificate course of valuation of ICAI. His achievement: he has been elected a Central Council member of ICAI for the period 2019 to 2021. Apart member in more than 25 committees of ICAI, he is chairman of Valuation Standard Board and CSR Committee of ICAI for the year 2021, member of ICAI Disciplinary Committee Bench 1 for the year 2020-21, and Vice Chairman of Direct Tax Committee for the year 29-20 and 2020-21. He has been nominated as member of Quality Review Board QRB for 3 years from 2020 to 2022. He is conceptualizer of portal www.expertpanel.in, which is a one-stop solution for all professional queries, which has been given more than 20,000 answers since its launch in mid of year 2018. He has delivered more than 1100 lectures and articles on various topics of income tax, corporate law, LLP, audits, peer review, quality review, etc. at more than 170 forums throughout the country. Most of his presentation and articles since 2013 are available for free download from www.lunawat.com and from 2018 at www.expertspanel in also. He has authored book on chartered accountants documentation and compliance for audit and review, limited liability partnership, a complete resource book, importance of LLP after Companies Act 2013, chartered accountants documentation and compliance under Companies Act 2013, peer review and quality review, limited liability partnership, law, procedure and taxation, documentation for chartered accountants, limited liability law and procedures with ready reckoner, documentation for audits and accounting standard and CARO. He has written various articles on taxation, company law, and audit in various journals. He has a vast practical experience in taxation, audit, corporate law field, and he has been giving consultancy to various corporate, non-corporate entities on taxation matters. Now I request CA Pramod Jain ji to take over the dais. Please, sir. Thank you very much, CA Jaiprakash Agarwal ji, the convener of the Vikasnath CP Study Circle, and the CA Shyam Sundar Gupta ji, the deputy convener. The past conveners, CA Pradeep Kumar Jain ji, CA Sunil Kumar Gupta ji, Gopal ji Agarwal ji, and all my dear friends, sabko mera namaste. Wishing the very good health and happy moments, because ultimately we'll have to remain positive. Things are going around so many things, so better concentrate on the good things. That yes, we all are safe. So जितनी हमारा आयुष लिखा है जिएंगे, खुशी खुशी जिए, वो ज़्यादा बढ़िया. So talking about the session today, so I'll be taking about 147, 148 at the appropriate time within this when I'll be discussing the changes in the through the Finance Act 2021. तो उस वक्त जब 148 की बात आएगी तो उसको हम 148 के साथ साथ लेंगे. So I'll be sharing a presentation, and then जिसका जहाँ पे बीच में क्वेश्चन हो तो प्लीज उसी वक्त ही वो क्वेश्चन रेज कर दे, या तो अनम्यूट करके, नहीं तो चैट बॉक्स. Talking straightforward, when I've been taking this practical aspects of Finance Act 2021 since the enactment of prior to the enactment of the Finance Act on the budget, but after the Finance Act promulgation on 28th of March 2021, talking about the practical aspects of Finance Act. So when I start, I don't start by income tax, I start by company law. And why company law? When you are talking about Finance Act, income tax basically, and then company law, because you know this was for the first time that I heard something about companies law
in the union budget speech by Honorable FM Nirmala Sitharaman ji. Because earlier, if I see in the past history, there was never anything talked about the Companies Act. The last I read something, no, never heard, but read something, was the amendment in the through the Finance Act in the Companies Act 4 or 5 years ago, when there was a removal of the percentage limit for contribution to be made to the political party by a company. So that was 4 or 5 years ago. But this year, in the budget speech, it was announced, 2 amendments were announced, and both of them were very, very near and dear to my heart. And I had been talking about it since last 4 or 5 years, and had taken it to the not only the MCA but also PMO and the ease of doing business and all those forums I had taken. And thankfully, it has come out in the union budget speech as well as notified. Pehla kaun sa? Pehla is about the change in the definition of small company. Section 2, subsection 85 of the Companies Act. Up to 31st March 2021, small company की definition क्या थी? The definition was that if a company other than public company, that is a private company, which is not a holding or subsidiary of any other company or not a Section 8 company, if that company's paid up capital was less than 50 lakhs or turnover was less than 2 crores, and sorry, not or and, if both the conditions were met, then it was a small company. However, the section 2 subsection 85 talked about that not exceeding 50 lakhs, which may exceed up to rupees 2 crores, sorry 5 crores, and turnover की higher limit थी 20 crores. तो मैं ये कहता था कि आपके पास ये एक्ट में पावर है कि ये 50 लाख को बढ़ा के 5 करोड़ तक ले जाओ, कम से कम 1 करोड़ कर दो, टर्नओवर तो कम से कम 10 करोड़ कर दो. 2018 में कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ और उसके अंदर इस 5 करोड़ की लिमिट को कर दिया गया 10 करोड़ और ये 20 करोड़ को 100 करोड़. तो आई हैड बीन सेइंग अगेन एट दैट टाइम अगेन, मैं कहा आपने ये 5 करोड़ 20 करोड़ को तो अचीव किया नहीं है, आपने एक्ट में 10 करोड़ और 100 करोड़ कर दिया. आप कम से कम ये जो आपके पास पावर है उसको तो बढ़ा दो. And this time they have done it and a notification issued, and as on today the limits have changed and this lower limit of 50 lakhs has been increased to 2 crores and the turnover from 2 crores to 20 crores. तो आज की डेट में मार्च 21 तक तो यही लिमिट्स है, बट आफ्टर मार्च 21 आज की डेट में the limits are 2 crore and 20 crore. तो बेनिफिट क्या हुआ? मेरी कंपनी तो ऑलरेडी चल रही थी, सिर्फ डेफिनेशन चेंज होने से, कैपिटल की और टर्नओवर के लिमिट बढ़ जाने से मेरे को फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ, फॉर एग्जांपल मेरी एक तो फाइलिंग फीस कम हो गई. सेकंड, मेरे को किसी भी फॉर्म में प्री सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी स्मॉल कंपनीज में. थर्ड, मेरी लेस कंप्लायंस, 4 मीटिंग की जगह 2 मीटिंग. ठीक है, पेपर पे होती है तो पर पेपर पे भी कम करनी है, राइट. मेजर कंपनी हो जाए. और जो मेरी को नो IFC, नो कारो, नो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कुछ नहीं होना स्मॉल कंपनीज में. 21 में बनेगा, 22 में नहीं बनेगा. ठीक है, 21 के अंदर यही लिमिट है 50 लाख और 2 करोड़, बट 22 में ही खत्म हो जाएगी. हाँ, प्रीसीडिंग ईयर्स का काउंट होगा, करंट ईयर का काउंट होगा? नहीं, जो भी जिस साल का है 1 अप्रैल 21 से काउंट होगा ना. नहीं, जो टर्नओवर काउंट होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का होगा. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ना. और कैपिटल करंट का ऐसा ही था ना, उसमें कोई हाँ, अभी भी ऐसे ही. आप सोचो जब मार्च 22 की बनाओगे तो 21 के अंदर तो 2 करोड़ से 20 करोड़ किया है, तो 20 करोड़ तक की तो सारी कंपनियां कवर हो गई ना. जी. हमारी बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी इसमें, बहुत कंपनी आ जाएंगी सर, बहुत आ जाएंगी. नो IFC, नो कारो, नो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइलिंग फीस कम. पेनल्टीज जो है मेरी AOC 4 MGT 7 की और MGT 14 की 50%. AS के में भी, AS की इम्प्लीकेशन में भी नहीं, AS के अंदर कोई चेंज नहीं है. AS के अंदर जो
SMC, non-SMC है. Yeah, That SMC definition is as per the accounting standard rules. It is not as Yeah, per yeah. the Companies Act. उसमें कोई चेंज नहीं है. सर ये वहाँ पे भी capital सर में सर वहाँ पे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन कराओ ना, फिर इसमें सब जगह करा दिया. वहाँ तो ऑलरेडी सर कितनी 50 करोड़ कितनी की लिमिट है? हाँ वहाँ तो है. राइट राइट. क्या दिक्कत है? 50 करोड़. कितने की लिमिट है? 50 करोड़ की लिमिट है. वहाँ तो सारी की सारी SMC है. हाँ तो क्या दिक्कत है? एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट, कैपिटल में तो पिछले साल की देखी जाती है, कैपिटल करंट की लेते हैं. कैपिटल करंट की ले लो सर, 2 करोड़ की लिमिट हो जाएगी. 50 लाख से 2 करोड़. हाँ काफी फर्क पड़ जाएगा सर 1 लाख की कैपिटल रखते हैं सब. हाँ हाँ काफी है. कैपिटल टर्नओवर का मेन झंझट ज्यादा था. टर्नओवर अभी अच्छा कर दिया है. हाँ. सर. एक सर बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है कि 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनीज को मर्ज करना हो तो आपको NCLT नहीं जाना, RD से ही हो जाएगा काम. सो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज need not go to NCLT, get it done at the RD level itself. So एक तो ये बेनिफिट्स, और दूसरा स्मॉल कंपनी के सारे बेनिफिट. Another benefit, second amendment was made in relation to 1%. और 1% कंपनी को लोग बात क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि उसके अंदर भी ये 50 लाख और 2 करोड़ की लिमिट थी कि भी 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर क्रॉस की तो आपको OPC से प्राइवेट कंपनी बनानी है. 50 लाख से कैपिटल इंक्रीज हो गई तो आपको OPC से प्राइवेट कंपनी बनानी है. सिंगल पर्सन की बजाय 2 बंदे चाहिए मिनिमम. तो लोग बात बनाते नहीं थे, कहते बनाऊंगा 2 करोड़ तो भी क्रॉस कर जाएगी. नाउ with effect from 1st April 2021, no limit. टर्नओवर आपकी 1000 करोड़ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. सो अ ह्यूज बेनिफिट. कैपिटल जितनी मर्जी हो, टर्नओवर जितनी मर्जी हो. सो नाउ OPC अब बननी चालू होंगी. पहले क्या था कि एक इंडियन सिटीजन who was a resident, he only was allowed to incorporate a OPC. Now an Indian citizen who even he is a non-resident, he can also form. Indian citizen who is a non-resident, he can also form an OPC. So again, a huge professional opportunity. Plus of course, resident की भी definition उन्होंने for this purpose only 182 दिन से घटा के 120 दिन कर दिया कि 120 दिन भी अगर इंडिया में रह जाएगा तो रेजिडेंट कहलाए पुराने डेट्स के लिए. एंड नो फोर्स कन्वर्जन. पहले होता था ना कि करना ही करना है, 2 करोड़ क्रॉस करते ही 50 लाख क्रॉस करते का कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं. एंड इवन द एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू OPC. कोई लिमिट नहीं है. ऐसा नहीं है कि मेरे को टर्नओवर और कैपिटल उससे कम लेके आनी है, तो एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी को भी OPC में कन्वर्ट कर सकता हूं. दोनों के लिए एक सिंगल फॉर्म INC6. तो मैं OPC बनाऊं क्यों? क्या फायदा? पहले तो बात करते हैं OPC एक इंडिविजुअल है. वो कई बार होता था कि भाई मैं सेकंड पर्सन किसको लाऊं, कभी किसी एम्प्लॉय को बना रहा है, कभी किसी दोस्त को बना रहा है. स्पाउस को बना नहीं सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या वो फीमेल को लेके नहीं आना चाहता, कहता बिजनेस में नहीं. उन सब के लिए OPC. कई लोगों को ये है कि मेरे को कंपनी बनानी है पर दूसरा बंदा नहीं मिल रहा, मेरे को MNCs में जाना है, मैं क्या करूं, मेरे को कंसल्टेंसी का काम है, कमीशन का काम है, और मैं कार्ड पे जाऊंगा उसमें डायरेक्टर होना चाहिए. अब हो सकता है, सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं है, जितना मर्जी बड़ा काम करो. लिमिटेड लाइबिलिटी होगी. सोल प्रोप्राइटरशिप भी बन सकती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है. यहाँ पे बिजनेस के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी है. ₹1,00,000 कैपिटल, ₹1,00,000 की लिमिट. सो लिमिटेड लाइबिलिटी इंडिविजुअल को, सोल प्रोप्राइटरशिप को तो कहीं थी नहीं ना, अब आ गई. एंड टर्नओवर रिस्ट्रिक्शन हटा के यस उसको कंपनी बन जाएगी तो उसको ये सब है कि सेक्शन 73, 185, 186 ये सब तो कंप्लाई करने पड़ेंगे, बट स्टिल ही हैज अ गुड चांस. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, सक्सेशन प्लानिंग. क्योंकि इसमें क्या हुआ कि मेरे बाद कौन, तो एक नॉमिनेशन इसके अंदर होता है, आर्टिकल्स में नाम जाता है. एंड यू कैन चेंज दैट पर्सन ऑल्सो. आपने आज एक जने हो क्या, आपको कुछ टाइम बाद लगा नहीं वो पर्सन सही नहीं है, यू कैन चेंज दैट पर्सन. उसकी कंसेंट साथ जाती है, यू कैन चेंज दैट. सो सक्सेशन प्लानिंग, लिमिटेड लाइबिलिटी, सो ऑल दोज बेनिफिट. इनकम टैक्स का बेनिफिट, एक सोल प्रोप्राइटर
अपने आप को सैलरी नहीं दे सकता, इंटरेस्ट नहीं दे सकता, ओपीसी दे सकता है, सेपरेट एंटिटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो सैलरी, इंटरेस्ट, 15% का रेट, टैक्स रेट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या 22% का रेट, ये तो इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा ना, ओपीसी को मिलता है। जैन साहब इसमें स्मॉल कंपनी वाला वो अकॉर्डिंगली लगता रहेगा, मतलब ये ओपीसी स्मॉल कंपनी ट्रीट होगी तो उसमें वो रूल लग जाएगा अकॉर्डिंगली जो अभी ऊपर समझाया आपने। हाँ जी, हाँ जी। ओपीसी कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ स्मॉल कंपनी, और वो ओपीसी के लिए ओपीसी के लिए वैसे भी बहुत सारे रेट्स डिफरेंट है। अच्छा फाइलिंग रेट्स डिफरेंट है, कंप्लायंसेस तो ना के बराबर है ना। अच्छा, तो इसमें जब- डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा स्मॉल कंपनी का और उसका, ऐसा कुछ भी नहीं है? नाम के अंदर आता है ना ओपीसी, जो प्राइवेट लिमिटेड का नाम रहता है उसमें लिखा रहता है ओपीसी। ओपीसी हाँ। प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी OPC। प्राइवेट लिमिटेड, बस कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हाँ और इसमें टर्नओवर का तो कंसेप्ट नहीं सर, जैसे कारों का हाँ। और ये जो कारों आईएफसी वगैरह की जो एप्लीकेबिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे स्मॉल कंपनी में नहीं है अब इसमें भी 20 नहीं करोड़ है। का। हाँ है तो ही नहीं। 20, तो उसमें कोई क्राइटेरिया है कि 20 करोड़ तक या एनी 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 टाइप ऑफ कैपिटल एंड टर्नओवर रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर? वो आपको हर एक में देखना है। अब क्या है कि अगर आप देखोगे कारों में ओपीसी को एक्सक्लूड कर रखा है, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर हाँ एंड जी, हाँ जी, कैपिटल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, कैश फ्लो एंड ऑल ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। अच्छा कैश कारो फ्लो भी लगेगा अलाउड नहीं है, कैश फ्लो भी रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब स्मॉल कंपनी वाली चीजें एज इट इज ही हो गई एक तरह से इनके लिए। नहीं सर, और उसके स्मॉल अलावा कंपनी, हाँ ओपीसी तो अलावा ही, ओपीसी को और गवर्नमेंट कंपनीज को अलग बहुत सारे बेनिफिट दे रखे हैं ना सर। तो एनबीएफसी बना सकते हैं इसको ओपीसी को? नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट फर्दर नहीं कर सकते, Invest- नो एनबीएफसी, नहीं, नो चैरिटी, दोनों काम नहीं हो सकता। राइट। सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं बना सकते। ना ना सेक्शन 8 कंपनी, ना फर्दर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये सक्सेशन वाला सर जैन साहब थोड़ा सा बता देंगे दोबारा? आप आर्टिकल्स में नाम देते हैं कि मेरे कि अगर इस शेयर होल्डर को कुछ हो जाएगा तो इसके बाद हु विल बी द शेयर होल्डर। ओके ओके। डायरेक्टर एक मिनिमम है, बाकी नॉर्मली 2 होते हैं, यहाँ पे एक मिनिमम है, वो चाहे तो ज्यादा रख सकता है। ओके, एक ही डायरेक्टर एक ही शेयर होल्डर होगा जी? डायरेक्टर एक, शेयर होल्डर एक, बट डायरेक्टर एक से ज्यादा रख सकता है। रख सकता है क्या? अच्छा, हाँ, कल को उसको चाहिए, मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए, तो कोई मनाही थोड़ी है, बट शेयर होल्डर एक ही होगा। और मीटिंग्स वगैरह का जैसे है इसमें क्या रहेगा? जैसे उसमें अगर सिंगल है तो कोई मीटिंग होनी नहीं है, क्या होनी? हाँ हाँ, मीटिंग तो 2 लोगों में होती है ना, नोटिंग कर लेगा अपना, दैट्स ऑल। ये जैसे बैंक्स वगैरह में अकाउंट खोलते हैं और रिजोल्यूशन वगैरह मांगते हैं, वो सब बैंक वो वाले अपना साइन करके देगा, दैट्स ऑल। अच्छा, हैं बहुत सारी ओपीसीज हैं, ऑलरेडी हैं, बट आप सोचो ना कि आप एक इंडिविजुअल को सोल प्रोप्राइटर की जगह ओपीसी में लिमिटेड लायबिलिटी दे रहे हो, विद टैक्स प्लानिंग दे रहे हो, वरना कहाँ अवेलेबल? फिर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा आप सोचो ना, आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फीस मिलेगी और ओपीसी में कितनी मिलेगी? सही बात है, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, डिविडेंड पे उसका टीडीएस कटेगा तो डिविडेंड उसकी इनकम में आ जाएगी। So what about audit part sir? Audit is mandatory like होगा, other companies? प्राइवेट Other लिमिटेड है भाई। Okay. सर इसमें जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फॉर एग्जांपल इसने 50 करोड़ रुपए कमाए और वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो शेयर होल्डर है डिविडेंड के रूप में देगा, तो जब वो डिविडेंड अपने अकाउंट में लेगा ये, तो उस पर तो वो उसी कैटेगरी में आएगा, ये स्लैब रेट में या आएगा, लीगल कैपेसिटी में। बिल्कुल। ओके, अगर 50 करोड़ कमा रहा है तो दे देगा ना, क्या दिक्कत है? इंडिविजुअल में भी देगा, वैसे भी देगा। और वैसे टैक्स ज्यादा लग जाएगा सर इसमें वैसे? डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है केस टू केस। तो इसका मतलब सर प्रोप्राइटर जो डायरेक्टर है और कंपनी दोनों डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट हो गए, और जीएसटी वगैरह के दोनों के अलग अलग ही चलेंगे, लिमिट्स वगैरह सब कुछ। वहाँ पे कंपनी में 20 लाख और अपनी पर्सनल इनकम में 20 लाख। सेपरेट है सर, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक सर जो आपने भी बोला कि 2 कंपनी स्मॉल कंपनी को वो मर्ज कर सकते, थोड़ा उसे भी टेकअप कर लेंगे क्या, थोड़ा सा उसको? फास्ट ट्रैक मर्जर की स्कीम है सेक्शन 233 के अंदर, ये इसी इसमें इंट्रोड्यूस हुई सर? ना ना, वो तो शुरू से ही है, कंपनीज एक्ट 2013 में शुरू से ही है, बट लगभग 2 करोड़ से नीचे वाली कंपनियां होती कितनी थी? अच्छा, ओके। अब 20 करोड़ से नीचे वाले, सर सोचो आप, मेरे को नंबर ऑफ कंपनियां कम करनी है,
हाँ तो कर दूंगा ना आरडी के पास जाके। अच्छा, तो इसमें स्मॉल कंपनी वर्ड लिखा हुआ होगा जो आप बता रहे हैं। हाँ यस यस यस, अच्छा, इसलिए फास्ट आपने- ट्रैक मर्जर, तो आरडी के पास होना स्मॉल कंपनी, Okay. होल्डिंग सब्सिडरी भी हो सकती है और स्मॉल कंपनी। जैन साहब एक चीज और पूछनी थी, जैसे 2 डायरेक्टर की कंपनी है और एक डायरेक्टर की डेथ वगैरह हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो एक डायरेक्टर रह गया, तो क्या उसमें इसमें कन्वर्जन का करना पड़ेगा या बाय डिफॉल्ट कुछ फैसिलिटी रहेगी, क्या है? या इसमें हमें एक डायरेक्टर की डिमाइस के बाद या होने के बाद एक ही बचता है, तो फिर वो कोई और जुगाड़ नहीं होता है दूसरे डायरेक्टर का, तो क्या आप ओपीसी की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? हाँ, ओपीसी के लिए बोल रहा हूँ कि एक नॉर्मल कंपनी। ओपीसी में तो एक डायरेक्टर मिनिमम रिक्वायर्ड है ना। नहीं सर, एक नॉर्मल कंपनी है जो ओपीसी नहीं है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड में, तो एक और डायरेक्टर आप ईजीएम बुला के एक और डायरेक्टर अपॉइंट करो। नहीं सर, अगर मान लो नहीं हो पाता है तो कन्वर्जन उसके इसमें हो जाएगा, ओपीसी में उस कंपनी हो जाएगा। पहले तो फिर डायरेक्टर ही अपॉइंट करके उसे नॉर्मल कंपनी करनी पड़ेगी। हाँ, वो सर एक दिक्कत ये आएगी प्रैक्टिकली कि उस कंपनी में एक डायरेक्टर लाना ही पड़ेगा ना इन एनी केस, तभी तो वो फॉर्मेलिटी हो पाएंगी। ये मेरा ले आओ, एक बार ले आओ, उसके बाद बोलो हट जाना, एडिशनल बनाओ एजीएम में, वो बाहर हो जाएगा और क्या। तो सर इसमें कुछ ऐसा सुविधा नहीं है कि मान लो इन केसेस में वो हेल्पलेस है, मान लो कोई नहीं कर पाता है किसी आदमी को अपॉइंट फॉर द टाइमिंग या कुछ ऐसा है, तो वो बाय डिफॉल्ट ऐसी फैसिलिटी हो कि वो कन्वर्ट हो जाए ओपीसी में, ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसे अपने आप नहीं होता, आपको अपने आप नहीं, मतलब वो जो रिमेनिंग डायरेक्टर बचा है वही अप्लाई कर दे कि कर सकता है, आईएनसी 6 के अंदर कर सकता है। एक बार आप ट्राई करो, आईएनसी 6 में कर सकता है। फॉर्म तो एक ही है ना, आईएनसी 6। हाँ ठीक है, राइट सर। चल थैंक यू। आगे और तो कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? नहीं। ग्रेट, चलिए आगे चलें। हमारा एक पहला पॉइंट सीनियर सिटीजन के लिए एक दिया गया। हमको सबको पता है कि सीनियर सिटीजन की लिमिट है, एक है 60 इयर्स एंड अबव, एक है 80 इयर्स एंड अबव, एंड नई कैटेगरी आई 194 पी के लिए 75 इयर्स एंड अबव। स्लैब रेट के लिए और एडवांस टैक्स के लिए, 80 टीटीए के लिए, मेडिकल के लिए, तो अभी भी यही लिमिट है 60 और 80। बट 75 इयर्स एंड अबव के लिए आया है इन केस he is having only 2 sources of income, and that is, one is pension, second is interest from the bank, and in that case the interest should be from the same bank from which pension is received. अगर ये कंडीशन मीट आउट होती है तो बैंकर जो है उससे डिक्लेरेशन लेगा, 87A की रिलीफ देगा और टीडीएस डिडक्ट करेगा ऑन द इंटरेस्ट, नॉट अंडर 194A बट अंडर 194P, जो उसका स्लैब रेट बनेगा, उसके बेस के, ठीक है ना, उसके बेस के ऊपर बनाएगा। राइट, और इस केस के अंदर आईटीआर नहीं जाएगी, इस केस के अंदर आईटीआर नहीं जाएगी इस केस के अंदर। सो एक ये हो सकता है कि आवाज आ रही है कोई? मैं कह रहा हूं सर, इसमें बैंक को काम बढ़ गया है ना सर, बहुत ज्यादा। हाँ, तो जो ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन हैं जो ये रिलीफ लेना चाहते हैं, तो बैंकर को लगाया कि भैया तुम्हारे को पेंशन तो सब के सब गवर्नमेंट बैंक से ही देते हैं, प्राइवेट बैंक से तो होती नहीं है जी। तो उनकी ड्यूटी लगाई है कि आप वो और तो जैसा भी एक से ज्यादा बैंक में अकाउंट नहीं रख पाएंगे क्या? एक से ज्यादा बैंक में अकाउंट नहीं रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। नो रेंटल इनकम, नो म्यूचुअल फंड इनकम, नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, ओनली दे कैन। सर हमारे बहुत सारे आर्मी के, पोस्ट ऑफिस के, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, ऐसे जो अपने गांव में रहते हैं, एक ही बैंक है, सब कुछ वही रखा हुआ है। कुछ एक हैं बट उनकी रिक्वायरमेंट है ना, अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है ना, और 2.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है तो आपको आईटीआर भरनी है, उनका टीडीएस कट जाता है, उनकी नॉन कंप्लायंस हो जाती है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा वो जाके बैंकर को बोलेंगे भैया तू कर, तेरी जिम्मेवारी है ना, ये उनके लिए। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सभी के लिए कि हम क्या चाहते हैं कि कंप्लायंसेस कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? सर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, हिसाब से होना चाहिए, अननेसेसरी की नहीं होना चाहिए।
कम होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। कम ही होना चाहिए। कमी होना चाहिए। मेंबर और चैट बॉक्स में किसी का और का अभी तो किसी का और का नहीं है, गड़बड़ हो गई है। और तो किसी का नहीं है। ये सत्ता जी कह रहे मोर होनी चाहिए। हैं? तो सत्ता जी कह रहे ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा। कौन कह रहे हैं? तो सत्ता जी कह रहे सर, हमारे फ्रेंड। सर अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए, वासु रीजनेबल होना वासु जी चाहिए। कह रहे हैं वेरी मिनिमम। वासु जी भी कह रहे हैं वेरी मिनिमम। विवेक जी भी कह रहे हैं टू बी मिनिमम। तो भी मिनिमम। सर रिक्वायरमेंट रीजनेबल होना चाहिए, अननेसेसरी की ओवर नहीं होना चाहिए। ये ओवर कौन डिसाइड करे? सर अननेसेसरी की जो आपके हिसाब कंप्लायंसेस से हैं और डिफरेंट है, एक्सेस मेरे हिसाब हैं। से डिफरेंट है। सुनील भाई आपके हिसाब से डिफरेंट सर है, मेरे वैसे तो हिसाब से डिफरेंट। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दैट वे, बट सर नहीं आप बताओ कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए? अब इसमें आपके हिसाब से डिफरेंट व्यू है, मेरे हिसाब से डिफरेंट व्यू है। अच्छा मेरा सेकंड क्वेश्चन, क्या ये जीएसटी ऑडिट हट गया, टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 से 10 करोड़ हो गई, आर बी हैप्पी और नॉट हैप्पी? प्रोफेशनली तो वी आर नॉट हैप्पी। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, सर किसी और से थोड़ी पूछ रहा हूँ। काम तो कम हो गया सर। अरे काम इतना कम तो नहीं हुआ है, उससे इतनी ज्यादा दिक्कत तो नहीं लग रही। नहीं टैक्स ऑडिट भी 1 से 10 करोड़ हो गया। कंपनी ऑडिट भी कह रहे हैं कि वो 20 करोड़ की लिमिट हो गई है, तो 20 करोड़ से नीचे वाले पे हटा देते हैं। और सर ऑन द अदर हैंड स्मॉल कंपनी को बढ़ाया है इन्होंने टर्नओवर, तो उसका ऑडिट भी कह रहे हैं हटा देते हैं। अब डिसीजन चेंज हो गया ना जैन साहब। अभी आपने पहला क्वेश्चन किया था कि कंप्लायंस ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। सबने कहा कम होनी चाहिए, तो कम कर तो रहे हैं। नहीं सर कम लेकिन नहीं आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया कि ऑडिट उन्होंने हटा दिया। अब ऑडिट हटाई तो कंप्लायंस ज्यादा होगी। तो सर एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए ना, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस क्या है? कंप्लायंस कम चाहिए, हाँ कम चाहिए। ऑडिट हटा दो, नहीं मत हटाओ। अरे भाई एक चीज तो बोलो। ऑडिट हटाना हटा दे, लेकिन कंप्लायंस पूरी होनी चाहिए। सर कैसे ऑडिट हटाया? तो ऑडिट तो हटा रहे हैं सर, टैक्स ऑडिट भी हटा रहे हैं, कंपनी ऑडिट भी हटा रहे हैं, कंप्लायंस कमी तो कर रहे हैं सर। फिर हमारी जरूरत क्या रही फिर? हेलो मुझे नहीं पता, हम भी तो कह रहे हैं। सुनील भाई आप ही तो कह रहे हो कि भैया कंप्लायंस कम करो। सर मैं कम की नहीं कह रहा सर, अननेसेसरी की जो कंप्लायंसेस है ना प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल। सर डिपार्टमेंट का कहना अननेसेसरी कह रहे हैं। आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमको निकल के क्या आता है? कुछ नहीं। जीएसटी ऑडिट में क्या होता है? सब लोग तो 9 में भरते हैं, 9C में भरते ही नहीं है। समझे? आपका थॉट प्रोसेस और डिपार्टमेंट का थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। अंडरस्टैंड? The more you say lesser compliance, so they would be reducing the compliance. Understand? Why should a chartered accountant? आपने कभी एडवोकेट को सुना कि ये बोला भैया नया लॉ क्यों बना दिया? नहीं, कभी नहीं। तो हम क्यों कहते हैं भाई? सोचो जरा थॉट प्रोसेस। कभी डॉक्टर को सुना तो नई नई बीमारियां आ रही हैं, क्या है ये? नहीं सर वैसे तो कंप्लायंस बढ़ रहा है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, उसको मैनेज करना का इशू है। तो सर वही तो गवर्नमेंट भी ये कह रहे हैं, आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। हमेशा एक्सटेंशन के लिए जाते हो, हमेशा रिट पिटीशन फाइल करते हो, तो भाई तुम लोगों से संभल नहीं रहा है। यू आर ओवरबर्डन, यू आर सेइंग ओवरबर्डन। आपकी जब रिप्रेजेंटेशंस आती हैं ऑल ओवर इंडिया, सोशल मीडिया में लिखते हैं टैग कर करके एफएम को, पीएम को, कि क्या कर रखा है, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, एक्सटेंशन क्यों नहीं कर रहे, अलाउ क्यों नहीं कर रहे? कह रहे भाई आप लोगों से काम ही नहीं संभल रहा, आप कर ही नहीं पा रहे। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज राइटिंग, प्रॉब्लम इज चार्टर्ड अकाउंटेंट इज राइटिंग, not the assessee, not the person who is affected. Have a thought process. What do we want? Actually, what do we want? Somewhere the message has gone, is continuously going to the department that we don't want work. I'm telling you this. So we have to use our social media very judicially. प्लीज समझ लें ये बात को। ये बहुत जरूरी है हम सब लोगों के लिए ये समझने के लिए, क्योंकि इसी वजह से अपना ये टैक्स ऑडिट भी 1 करोड़ से 10 करोड़ किया, पहले 5 करोड़ किया, 10 करोड़ किया। थॉट प्रोसेस है, टाइम लगेगा, सोचिए।
टाइम लगेगा, सोचिए। सर गवर्नमेंट भी तो एज ए टूल यूज कर रही है ना सर, पब्लिक को मैसेज देना चाहती है कि आपको ऑडिट से निजात मिल रहा है, क्योंकि हम ही कह रहे हैं भाई कॉम्प्लायंस कम कर दो, हमसे नहीं संभल रहा, एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन, हम ही तो कह रहे हैं, और कौन कह रहा है? सुनील भाई, हम ही तो कह रहे हैं, तो कर रहे हैं। थॉट प्रोसेस है, टाइम लगेगा हमको भी समझने में, क्योंकि हम लोग नॉर्मली वी आर ऑलवेज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द असेसी, सो दैट इज अ बिट राइट। देखो, जीएसटी मैं करता नहीं, तो जीएसटी ऑडिट की मैं बात नहीं करूंगा। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस नॉट शोन, इंटरेस्ट ऑफ माइनर सन, बैंक इंटरेस्ट 200 नॉट शोन, इज इट ओके? नहीं सर, दिखानी तो पूरी की पूरी है। अगर आपको माइनर सन है तो 1500 रुपए तक की तो एग्जम्पशन होती है, बाकी उसके ऊपर। सर ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का क्या है संजय गुप्ता जी, मुझे नहीं पता। आप अगर एसएफटी की बात कर रहे हैं तो एसएफटी तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो एसएफटी के अंदर इंडिविजुअल को या नॉर्मली को तो फाइल नहीं करना, जो डिफाइंड क्राइटेरिया सिर्फ उसी के अंदर फाइल करना। तो उसके अंदर पहले भी हमारा इतना नहीं था सर, अगर मैंने 10 लाख रुपए से ऊपर किसी को शेयर अलॉट किए तो उसकी जाती है, नॉर्मली वही है, या कुछ जो एडिशन किए नॉर्मल हर एक के पास वो एप्लीकेबल नहीं है। सर जब टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं तो उनका जो कॉल सेंटर वहीं पे लिखना पड़ेगा हर एक को, नॉट मोर देन दैट। हिमांशु जी, हम तो उन्हीं को ही बोल सकते हैं, और अगर ऐसी कोई ग्लिच आती है तो कभी बताइएगा, वी कैन टॉक टू देम कि एज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आईसीआई वी कैन टॉक टू देम कि ऐसा टेक्निकल ग्लिच है। सो थैंक गॉड दे आर लिसनिंग टू ऑल सच ग्लिचेस, and even at this the new website which they have created, they had taken the views. Not only MCA is also working over it, income tax department also, so they are working over it, right? Now why I talked about it, because this is the reason why my next slide, because of these extensions, the limit has been increased from 1 crore to 5 crore for assessment year 2021 and 5 crore to 10 crore for assessment year 21-22. And what do we mean by it? We mean by it कि अगर मेरा receipts, payments दोनों का जो टोटल करेंगे उसका 5% चेक करना है कि वो कैश है कि नहीं है, पेमेंट्स का 5% चेक करना है। और इसके अंदर क्योंकि हमने पिछले साल भी किया है, तो सर आपको ये बता दूं कि प्रोप्राइटर अगर अपना या पार्टनर अपना कैपिटल डालता है या निकालता है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। Now my question out here is कि मान लीजिए मेरे 8 करोड़ की रिसिप्ट टर्नओवर है, मेरा रिसिप्ट्स का कैश पोर्शन इज लेस देन 5%, मेरा पेमेंट्स का कैश पोर्शन इज आल्सो लेस देन 5%। इन दिस केस माय लिमिट इज 10 करोड़, और उसमें से अगर कोई एक भी 5% क्रॉस करता है तो मेरा लिमिट है 1 करोड़। माय क्वेश्चन इज, अगर मेरा ये दोनों की लिमिट 5% से नीचे है तो क्या मैं फिर भी ऑडिट कर सकता हूँ? या पिछले साल मेरा अगर 5 करोड़ की लिमिट थी और दोनों 5% से नीचे था, तो क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ, या किया या नहीं किया? ऑडिट वैसे करा लो, लेकिन बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिटर्न तो टाइम पे फाइल करनी पड़ेगी। नहीं, आपने ऑडिट करके आपने साइट पे अपलोड की या नहीं की? नहीं, हमने तो नहीं की। तो ऑडिट नहीं किया, क्वेश्चन ये है मेरा। नो, ऑडिट किसी ने नहीं किया ना। हाँ, राकेश जैन जी ये कहना है ऑडिट विल बी ऑप्शनल, यानी आप कर सकते हो। नहीं सर, ऑप्शनल नहीं है सर ऑडिट। राकेश जी का कहना ऑप्शनल है, व्यू है। धनंजय जी का, आपका, कृष्ण जी का, अग्रवाल साहब का कहना है नो। डिफरेंट व्यूज हैं, बट आई अप्रिशिएट एंड से कि नो, वी कैन नॉट डू इट, बिकॉज वो जो ऑडिट करूंगा वो इनकम टैक्स का ऑडिट नहीं होगा। बिकॉज क्लॉज 8 में जब मैं भरता हूँ, क्लॉज 8 के अंदर वो मैं 44 ABA भर देता हूँ, तो ट्रू एंड करेक्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है ऑडिट करते समय, तो सिर्फ सीए को इशू है, इनकम टैक्स एक्ट में भी और मेरा आईसीआई में, बिकॉज ही इज नेग्लिजेंट। एसएससी को तो कुछ पता नहीं करता, मुझे नहीं पता, ऑडिटर ने कहा करना है तो मैंने करा दिया, तो ऑडिटर वुड बी एट गिल्टी।
और डिपार्टमेंट भी ये कहेगा हमने तो 10 करोड़ से नीचे वाले को एग्जेप्ट किया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बेवकूफ बना के ऑडिट कर रहे हैं। सो डोंट डू इट। अगर बैंकर बोलता है, अगर एसएससी बोलता है ऑडिट करो तो करो, लेकिन SA 700 की रिपोर्ट इशू करो, नॉट 3CA 3CB 3CD। SA 700 की रिपोर्टिंग इशू करें, राइट। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब हम गए थे FM के पास तो उनको हमने समझाया कि मैम अभी 10 करोड़ से नीचे है तो आपका ये ESI PF 269 SST 40A3 269 ST ये सारे कंप्लायंस तो 10 करोड़ से नीचे वाले पे खत्म हो गए। बोले कैसे? बैंक का मैडम ये जो डिटेल होती थी, जो CPC एडिशन करता था वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से ही तो करता था 3CD से। And then we were surprised to see there was a change from the budget to the Finance Act, whereby they added another paragraph, an explanation, which they said, in case the assessee is receiving or paying through checks or drafts drawn on a bank, then those checks or draft has to be account payee. In case they are non-account payee, they would be treated as cash. Now it was not there last year जब 5 करोड़ की लिमिट थी, अब 10 करोड़ की लिमिट में आया। अगर आपको याद हो जब हम टैक्स ऑडिट करते हैं तो हम 48(3) में क्या लिखा करते हैं? That though the assessee has not made any payment in excess of 10,000 rupees per person per day, पहले 20,000 था, अब 10,000। However, the assessee did not possess the necessary documents to evidence the same. कहते हैं वो एविडेंस नहीं कर पाया, वो कह रहा है। अब क्या होगा मार्च 21 के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक है रिसिप्ट्स, एक है पेमेंट। पेमेंट के लिए वो कह ही नहीं सकता कि मैंने अकाउंट पे इशू नहीं किए। अगर वो कहेगा अकाउंट पे इशू नहीं किए तो 48(3) का इशू है। वो कहेगा मेरा पेमेंट्स तो हमेशा ही अकाउंट पे ही था, मैंने कुछ चेक इशू किए हैं, मैंने साइन किए। रिसिप्ट्स के लिए वो कह सकता है, डिपेंड्स अपॉन द असेसी। रिसिप्ट्स के लिए वो क्या कह सकता है? रिसिप्ट्स के लिए वो कह सकता है भाई मुझे नहीं पता, क्लाइंट ने सीधे मेरे बैंक में वहां जमा करा दिए या मेरे अकाउंटेंट ने बाहर जमा कराया, मुझे पता नहीं वो अकाउंट पे थे नहीं थे। पहली बात तो ये अकाउंट पे ही होता क्या है? अरे सर अकाउंट पे ही अगर मैं ये चेक देखूं तो चेक के अंदर ये दो लाइनें खींच देते हैं ना, इसको अकाउंट पे ही नहीं बोलते, ये सिर्फ क्रॉस्ड है। इट हैज टू बी मेंशन्ड अकाउंट पे ही सर। आप चेक करवाइएगा, चेक हम खुद जमा नहीं कराते बैंक में, आपका स्टाफ बताता है सर चेक आया है, ठीक है चेक आया जमा करा दे। ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी है अकाउंटेंट को, भैया जो चेक आया जमा करा देकर लिस्ट दे दे। चेक थोड़ी मैं एक एक देखता हूँ। तो सर आजकल NEFT से पेमेंट हो रहे हैं। अगर NEFT सर ठीक है ना, NEFT हो गया, RTGS हो गया, 100% नो इश्यूज। लेकिन सर चेक्स भी तो बहुत जगह हो रहे हैं, जहाँ हो रहे हैं वहां पे तो 10 करोड़ की लिमिट है। सर अगर चेक एक दो चेक भी अगर इशू हुए हैं, मतलब इशू या रिसिप्ट पेमेंट हुआ है हमारे यहाँ से और वो लिमिट क्रॉस ना एक सेकंड सर, रिसिप्ट आप दोनों चीजें बोल रहे हो। रिसिप्ट पेमेंट मतलब पेमेंट तो आप कह ही नहीं सकते अकाउंट पे ही हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर समझे मेरी बात। पेमेंट मैंने आप देखो मेरी बात गौर से समझो सर, पेमेंट तो 100% बोलना अकाउंट पे ही हुआ है। हाँ। जहां आपने बोला नहीं हुआ तो भैया 43 में एडिशन कर दो। हाँ। रिसिप्ट की बात करो, इसलिए आई हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाइल टॉकिंग आल्सो, वरना वही मेरे माइंड में चला जाएगा। अब रिसिप्ट की बात बोलो, आप क्या कहते हैं? तो सर रिसिप्ट में जैसे अकाउंट में हमारा क्लियरिंग लिखा आता है, क्या पता है वो तो आप बेरर दोगे तब भी हो जाएगा, क्रॉस होगा तब भी हो जाएगा, अकाउंट पे होगा तब भी हो जाएगा। कैसे पता लगेगा अकाउंट पे? तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जितनी भी चेक से रिसिप्ट आई है बैंक में देख के उन चेक्स का टोटल करें, अगर वो लिमिट के अंदर है जब तो टैक्स ऑडिट नहीं करना है, और लिमिट के बाहर है तो फिर टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा ना। करना नहीं हमारी जिम्मेवारी नहीं है भाई साहब। अच्छा प्लीज दोबारा समझ लें, असेसी की जिम्मेवारी है। ओके। अब मैं क्यों बार बार जब मैं कह रहा था ना हम ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट के ब्याह पे, एसएससी के लिए करते हैं तो वी आर हेल्पिंग बोथ। सर ये एसएससी को अल्टीमेटली बोलना अभी तू बता कि जो रिसिप्ट्स है वो अकाउंट पे ही है या नहीं है, तेरी जिम्मेवारी है। अगर तू कहता है अकाउंट पे ही है, 10 करोड़ की लिमिट है, तेरे को डाउटफुल है तो लिख के दे मेरे को। then we need to have some document for that 100% उससे राइटिंग में कि भैया वो कहेगा मेरे को श्योरिटी नहीं है कि वो अकाउंट पे थे कि नहीं थे। एक काम और कर देना,
टेल हिम टू राइट टू द बैंकर टू गिव अ डिटेल कि वेदर मेरी रिसिप्ट कितनी अकाउंट पे थी नहीं थी। कल को बैंकर कहेगा मेरे को नहीं पता, तो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने मांगा उसने नहीं दिया। Based upon the assessee's call, when he'll give you in writing, then at that time when you will audit, you will also mention because of that I am doing the audit, तब मैं बचूंगा। फिर मेरी लिमिट वापस 1 करोड़ हो गई। In such cases, please understand this, very very important, इसी साल से है ये। भाई साहब, जैसे आप कोई भी क्लाइंट है वो कहता है कि जी मेरी ऑडिट कर दो, मेरे को नहीं पता कि मैंने अकाउंट पे ही से लिया दिया है, क्या हो सकता है कोई बिना अकाउंट पे ही भी हो। नहीं लिया दिया, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई साहब, दिया बोला तो बोला भाई साहब, मैं तो फिर पूरा क्वालिफाई कर देता हूँ। हाँ सर लिए की बात करो, दिए की मत करना। वो 269T और में भी तो जाएगा ना, अगर पेमेंट किया रिसीव किया 269 ऐसे तो वहां पर भी तो डिस्क्लेमर देते हैं भाई साहब। इसका मतलब अगर वो कोई 1 करोड़ की लिमिट के बेस पर अगर ऑडिट हमसे कराता है तो पहले तो हमको वेरीफाई करना है कि हमने ऑडिट करनी है कि नहीं करनी है, उसके लिए उससे लिखवा के लेना है। वो ये कहेगा कि मेरे को पता नहीं कि हो सकता है कोई अकाउंट पे ना भी हो, तो उसके हिसाब से फिर हमको 48(3) और 269 ऐसे सब में भी क्वालिफाई करना है। कर ही रहे हैं वो तो इतने सालों से। नहीं वो इतने सालों से कर रहे हैं, अभी तक तो ये कह रहे थे कि पता नहीं अकाउंट पे ही है नहीं है, लेकिन अगर वो क्लाइंट के लिख के दे रहा है कि मुझे नहीं पता अकाउंट हो सकता है अकाउंट पे ही नहीं हो, इसलिए 1 करोड़ मेरी ऑडिट कर दीजिए, तो हमको फिर 269 SS और 48(3) और इन सब में क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। सर 48(3) में तो कर ही रहे हैं, वो तो पेमेंट में तो हम पेमेंट में तो वो कह रहा है, मेरी बात समझे नहीं आप। सही है सर, सही कह रहे हैं सर, वो पेमेंट में तो ऑलरेडी दे रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, और पेमेंट में उनसे लिखवा के तो कहेगा मैंने अकाउंट पे दिए। यहाँ पर हम ऑडिटर क्या कह रहे हैं सर, समझो, या पेमेंट के केस में एसएससी कह रहा है मेरा अकाउंट पे ये, लेकिन ऑडिटर नहीं मान रहा। रिसिप्ट्स के केस के अंदर एसएससी खुद कहेगा मुझे नहीं पता, तब तो मैं भी कहूंगा ना मुझे नहीं पता, तभी तो मैं ऑडिट कर रहा हूँ। सारा खेल रिसिप्ट का है सर, इसका मतलब 48(3) कमेंट तो देते ही है अकाउंट पे चेक वाला, सालों से दे रहे हैं। सर जैसे ही उसने हमको 1 करोड़ पे ऑडिट करवाने के लिए बोल दिया, तो हमको 269 SS में क्वालिफाई करना ही पड़ेगा ना। अगर रिसिप्ट है और अकाउंट चेक से है तो, अगर एनईएफटी या आरटीजीएस से कोई इशू नहीं है। एनईएफटी आरटी नहीं, चेक से है तो। चेक से तो दे ही रहे हैं अपन, पहले भी दे रहे हैं सर। दे रहे हैं सर। नहीं पहले तो ये दे रहे हैं, हमें पता नहीं अकाउंट पे चेक से किया कैसे किया, पहले तो ये लिख के दे रहे हैं सर, बट इट इज नॉट क्लियर। अब तो पता चल गया ना, जब क्लाइंट ने लिख के दे दिया कि अकाउंट पे ही नहीं है मेरा, तो अब तो हमको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा ना। नहीं सर देखो, जब मेरा 269 SS और T में आएगा, वहां पर मैं कहूंगा एसएससी कहेगा मेरा अकाउंट पे ही था, एसएससी हम कहेंगे कि हमारे को एविडेंस नहीं है। ये बात है। अगर अकाउंट पे एसएससी कह देगा तो फिर तो 1 करोड़ की लिमिट रही नहीं, उसकी 10 करोड़ की लिमिट है। अरे सर आप SST की बात कर रहे हो। हाँ जी, वो पेमेंट की बात होगी ना, आप SST की बात कर रहे हो। देखो हर केस में डिफरेंट केस है, एंड दिस अकाउंट पे वुड बी ट्रीटेड एज कैश इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44AB नोवेयर एल्स। बट सर क्लाइंट ये लिख के थोड़ी देगा कि मेरे पास जो पेमेंट आए वो अकाउंट पे ही नहीं आए, वो तो कहेगा आई एम नॉट सर्टेन, आई एम नॉट एबल टू वेरीफाई, तो वो अपना वो इतना ही लिख के देगा कि अकाउंट ऑडिट करने की कहेगा। भाई वो यही तो लिख के देगा कि मेरे को आई एम नॉट श्योर कि अकाउंट पे चेक है कि नहीं, आई डोंट नो। बट मैं तो कह रहा हूं एक्सप्रेसली ये नहीं बोलेगा कि मेरे अकाउंट पे, तब नहीं तो फिर हमारा जो ये बोल रहे हैं 269 SS वाले में कमेंट जाएगा, क्योंकि वो सर्टेन ही नहीं है। वही सर दो चीजें, SS अलग है, समझो, SS अलग है, AB अलग है, दोनों को मर्ज मत करो। अजय भाई नमस्कार। दोनों को मर्ज मत करो, राइट। तो इसके अंदर इस बार बहुत इशू होने वाले हैं। राकेश संजय गुप्ता जी का है, इफ वी डन ऑडिट एंड क्लाइंट एंड बैंक अग्री देन व्हाट इशू विल बी देयर एज पर इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स में तो ऑडिट किया ही नहीं ना आपने, क्योंकि इनकम टैक्स में तो ऑडिट तब बनता था जब वो कंडीशन होती थी। तो यू आर व्हाट यू हैव इशूड इज नॉट अंडर इनकम टैक्स, वो आपने खुशी खुशी वाला ऑडिट किया। बैंक तो सर किसी भी चीज के लिए एग्री कर जाता है, तो बैंक की बात तो छोड़ दो आप, और क्लाइंट जो आप बोलोगे समझ लेगा। एज एन प्रोफेशनल आई एम नॉट डन करेक्ट, सो मेरे सर पे तलवार है, ना क्लाइंट को कोई दिक्कत है ना बैंक को कोई दिक्कत है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट पे चेक? इफ मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अकाउंट
payers account to account pay. No, it has to be account pay written on the check, that is account pay. सिर्फ एक बैंक से दूसरे में चला गया वो नहीं होता, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस में उस पे है कि अकाउंट पे लिखा होना चाहिए। तो सर फाइनली कंक्लूड करके सर ये बताएं कि अब क्लाइंट को गाइड, क्लाइंट पे डिपेंड करता है सर। क्लाइंट खुद तो कहता नहीं है सर, वो कहेगा आप भी बताइए, आई एम नॉट सर्टेन। नहीं सर, उसको साफ फैक्ट बताओ, तू लिख के दे कि भैया हाँ वही ना, लिख के देने की बात है। तो अगर वो लिख के दे देता है कि आई एम नॉट क्लियर कि मेरे जो पेमेंट रिसीव हुए हैं वो अकाउंट पे ही 100% है कि नहीं, तो हम ऑडिट करने के लिए वो हमें बोलेगा। तो दैट इज दैट सफिशिएंट फॉर अस फॉर? यस हाँ, एंड देन मेंशन दैट इन आवर ऑडिट रिपोर्ट आल्सो ना। ओके भाई वही तो मेरा बेसिस है। 10 करोड़ से नीचे वाले के लिए इशू है, 10 करोड़ से ऊपर वाले के लिए इशू ही नहीं है। यस सर, सही बात है। और जिस केस के अंदर मेरा कैश ऑलरेडी 5%, एक्चुअल कैश 5% क्रॉस कर गया, वहां पे भी कोई इशू नहीं है। तो अगर उसके कस्टमर ने कैश जमा करा दिया सीधा कैश है मेरा अकाउंट में, वो भी कैश ही माना जाएगा? कैश संजय गुप्ता जी, व्हाट इज बेटर फॉर अस, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। वी आर देयर टू हेल्प द गवर्नमेंट एज वेल एज द एसएससी। Try and think that we are professionals. Start thinking that जैसा मेरे को एसएससी बोलेगा मैं उसको दोनों चीज बताऊंगा। सर करना पड़ेगा आगे पीछे जाके, क्योंकि धीरे धीरे एक्चुअली ऑडिट कम होने वाले हैं। तो आई हैव टू गो इनटू कंसल्टेंसी एंड अदर थिंग्स एंड स्टार्ट चार्जिंग फॉर दैट। राकेश जैन जी क्वेश्चन है, एलआईसी प्रीमियम पेड थ्रू अकाउंट पे चेक अगेंस्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। ये मुझे समझ में नहीं आया, अगेंस्ट व्हाट? LIC प्रीमियम का इससे क्या लेना देना है? I could not understand. Against deposit interest, it is account पे। No, in this case, sir, आपका 269T का इशू आ गया। 269T कहता है कि जब लोन आता है, लोन के अगेंस्ट जो पेमेंट करना है, that has to be in the name of the person from whom the loan has been taken. आप जिसका लोन अकाउंट चल रहा है उसके अगेंस्ट में LIC प्रीमियम, इनकम टैक्स, ये सब नहीं दे सकते उसके अकाउंट से। दे रहे हैं तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 269T, बिकॉज 269T की रिक्वायरमेंट है, इट हैज टू बी इन द नेम ऑफ द पर्सन टू हुम द अकाउंट इज बीइंग पेड। सर आस्क द क्लाइंट टू कीप कॉपी ऑफ चेक टू बी वेरीफाइड लेटर एट द टाइम ऑफ ऑडिट। आप वासु जी, आपको क्लाइंट को बोलना है कि आप अपना एविडेंस तैयार रखो, राइट? इज देयर एनी पेनल्टी इफ द ऑडिट हैज बीन डन? ऑफ कोर्स देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स that it has been delayed, तो आपका इंटरेस्ट, आपका अगर कोई लॉस होगा वो नहीं मिलेगा, आपका ड्यू डेट 31 अक्टूबर से 31 जुलाई हो जाएगी, फिर ऑडिटर के ऊपर आएगा इशू 277, इट इज दे दैट दे हैव नॉट इशूड द राइट सर्टिफिकेट, तो वहां की पेनल्टी इंस्टीट्यूट के अंदर आ जाएगा, आ सकता है। यू नो, दीज आर द एक्सट्रीम थिंग्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सर कॉपी आई शुड बी अवेयर रिलाई करें जैन साहब, कॉपी पे भी जो चेक की कॉपी है उस पे भी हम रिलाई कैसे करें? मान लो वो अकाउंट पे ही नहीं था और उसने अकाउंट पे ही करके फिर दोबारा कॉपी करके दे दिया। सुनील भाई, हम ना थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई एसएससी चेक की कॉपी नहीं रखेगा। प्रैक्टिकली बात करो, किसी क्लाइंट ने किसी जबलपुर में जमा करा दिया भाई, कहां से उसकी कॉपी लूंगा? हम वासु भाई जो कह रहे हैं, वो वासु अग्रवाल जी, वो थियोरेटिकल बात कर रहे हैं। अच्छा सर, उसी के बोल रहा था कि वर्ष से वर्ष अगर दे भी देता है, स्टिल वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू रिलाई ऑन दैट। ये मेरा पॉइंट था। तो अब हम उसमें ऑडिट करें तो क्या लिखे? जैसे क्लाइंट ने कर दिया, मुझे नहीं पता कि जो मैंने रिसीव किया है अकाउंट पे या नहीं है, और ऑडिट कर दो, हम क्या लिखें फिर उसमें? नहीं, एक सेकंड, अगर एसएससी ये कहता भाई मेरा अकाउंट पे है, तो उसको मेरे को एविडेंस देने की जरूरत नहीं। एसएससी की कॉल है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि अकाउंट पे है या नहीं उस केस में। तो अगर उसको ये बोलना है कि मेरे को नहीं पता अकाउंट पे है, तभी तो वो कहता है इसलिए मेरा ऑडिट बनता है, क्योंकि मेरा वो 5% हो सकता है एक्सीड कर जाए। तो हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमें क्या लिखना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में? हम भी यही लिखेंगे, बिकॉज द एसएससी इज नॉट श्योर ही दैट because the checks may not be account payee because it doesn't possess the necessary evidence, hence the 5% limit may have exceeded, hence तो फिर हमारा 269 एचएस के लिए क्या करेंगे अगर कोई लोन लिया हुआ है और उस अकाउंट पे? लोन के अंदर स्पेसिफिक उससे पूछो है कि नहीं है, वहां पर भी वो अपना देंगे, it does not possess the necessary evidence, सेम क्या है उसमें? सेम ही जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं है। इन सब जैसे आपने कहा कि जो हम क्लॉज नंबर 3 CD के 3 और 5 में जो लिखते हैं वहां पे ये रिमार्क हो जाएगा। हाँ, यस सर वो तो इम्प्लाइड हो गया एक तरह से, हमने फ्रंट पे लिख दिया था, वो वहां पे इफेक्ट करेगा ही।
हैं? जैसे किसी क्लाइंट ने लिख रहे हैं रीजन फॉर ऑडिट में। बोलिए सर। जैन साहब, जैसे किसी क्लाइंट ने हमारे बिहाफ पर, जैसे हमने किसी का ऑडिट किया है जबलपुर में, और उसने हमारे अकाउंट में कैश जमा करा दिया, तो कैश है ना मेरे अकाउंट के अंदर, तो वो तो बैंक ही मानेगा, वो बैंक के थ्रू पेमेंट आया है। कैसे सर? कैश जमा कराया, फिर तो मैं अपना क्या करूंगा, सुनो सर जी सुनील भाई, मैं प्रदीप जी, मैं क्या करूंगा, अपने एम्प्लॉय को बोलूंगा मेरा अकाउंट है पश्चिमी विहार में, तू पंजाबी बाग जा, वहां पे कैश जमा करा। अरे नहीं, वो तो सर क्लाइंट की बुक्स में भी आ रहा है ना, कि उसने मेरे बुक्स में आएगा ना, उसकी बुक्स में भी आएगा, लेकिन उसने जमा तो बैंक में कराया है ना सर। वो बैंक में क्या जमा कराया भाई साहब? कैश। भाई साहब कैश रिसीव किया तभी तो जमा कराया। उस एंगल से, हमारा ऑडिट के एंगल से वो कैश पे माना जाएगा वो उस एंगल। हाँ नहीं सर, ऑडिट के क्या, बुक अकाउंटिंग एंट्री के हिसाब से कैश है। हाँ, कैश में आएगा वो, अकाउंटिंग एंट्री के हिसाब से कैश है। अकाउंट क्लोज कैसे होगा? वास्तु जी सही कह रहे हैं, कैश डिपॉजिटेड, नरेशन इन द स्टेटमेंट वुड बी कैश डिपॉजिटेड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, माथुर साहब का क्वेश्चन है, शुड क्लाइंट बी आस्क्ड टू मार्क ऑल चेक्स इन चेकबुक एज अकाउंट पे एज सून एज चेकबुक इज रिसीव्ड? इट डिपेंड्स सर, कल को उसको कैश विड्रॉ करना हो तो सारे अकाउंट पे आएंगे तो कैश विड्रॉ करेगा। तो डिपेंड्स, केस टू केस। क्लाइंट को बता दो अकाउंट पे इश्यू होने चाहिए सारे, वो तो सर पहले भी था सर, तो 43 में तो पहले भी था। केस टू केस इश्यू करते समय ध्यान में। चलिए, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लिमिट वगैरह डिसाइड करेगा इसी साल के लिए, और फाइनेंस एक्ट से ही आया इसलिए डिस्कस किया। एंड सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू माय 44 ADA, है ना, मेरा 44 ADA, इसको लेके आ गए एट पार विद एप्लीकेबिलिटी रिलेशन टू 44 AD, क्योंकि पहले 44 ADA हर एक को एप्लीकेबल था, फिर उनका नहीं रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको लेके आए 44 AD के हिसाब से कि इंडिविजुअल HUF एंड पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट LLP। तो राइट, एक्सेप्ट LLP था, LLP को एक्सक्लूड कर दिया, बट जब फाइनेंस एक्ट आया तो HUF को भी हटा दिया, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कि HUF भी प्रोफेशन नहीं कर सकता, तो हटा दिया। नाउ इट इज ओनली इंडिविजुअल एंड फर्म एक्सक्लूडिंग LLP। अब हमारे बहुत सारे CA भाइयों ने LLP बना ली, बहुत सारे भाइयों ने CA अपने LLP बना ली। तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे समझेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। एक मेरी है ACA LLP, दूसरी है BCA LLP, दोनों की ग्रॉस रिसीव 40 लाख। एक्सपेंडिचर बी का कहता है मेरा 30 लाख का एक्सपेंडिचर है, तो भैया वो 50% से नीचे हो गया, तो भैया ऑडिट कराओ 44 ABD के अंदर। ACLB बोली भैया मेरे पास तो खर्चों की पूरी डिटेल है नहीं, पूरा ठीक है, 20 लाख रुपए के खर्चे दिखाओ, उतने का मेरा कैश विड्रॉ वगैरह सब कुछ कर लो, और 20 लाख रुपए में 44 ADA में चला जाता। अब बोला भैया LLP को तो अलाउड ही नहीं है। BCA LLP तो बहुत खुश, बोला भैया 30 के मेरे पूरे एक्सपेंडिचर अब मेरे को ऑडिट नहीं कराना, राइट। ALP बोला भैया मैं तो उसका बेनिफिट ले नहीं सकता, ये 20 लाख के पूरे खर्चे मेंटेन करने पड़ेंगे, तो किसी को फायदा किसी को नुकसान। तो LLP को अब 44 AD भी एप्लीकेबल नहीं है, ADA भी एप्लीकेबल नहीं है। और ये LLP को 44 ADA एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, मेमोरेंडम में रीजन दिया because under the LLP Act, LLP is required to maintain books of accounts. मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या एक कंपनी, समझ लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके के बुक्स मेंटेन होते हैं, ऑडिट होता है, क्या वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में रिटर्न फाइल कर सकता है? क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके अकाउंट्स मेंटेन होकर ऑडिट होता है, वो क्या प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है इनकम टैक्स की? नहीं, इंडिविजुअल HUF के अलावा कोई नहीं कर सकता, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म सब मना कर रहे हैं, राकेश जैन साहब भी मना कर रहे हैं। आप लोगों में से किसी ने ITR 6 पूरी देखी है? वहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, और किसके लिए है? 44 AE ट्रक बिजनेस मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लेते हैं 44 AE का बेनिफिट, तो सर कंपनी है, ऑडिट हो रहा है, अकाउंट्स है, उसको प्रिजम्पटिव 44 AE में। हाँ, 44 AE में।
तो LLP को क्यों नहीं अलाउ किया जबकि LLP बनी प्रोफेशनल्स के लिए थी? मतलब रीजनिंग, आई एम सेइंग रीजनिंग इज नॉट करेक्ट, रीजनिंग इज नॉट करेक्ट। रीजन क्या दिया सर उन्होंने? Because under LLP Act the books are required to be maintained. अच्छा, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी तो कि बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। तब भी उनको प्रेजेंटिव अलाउ कर रखा है। सो रीजनिंग आई एम सेइंग सर, में तो ऑडिट भी मैंडेटरी है, एलएलपी में तो फिर भी लिमिट दे रखी है ऑडिट की। हाँ अगेन सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं वही कह रहा हूँ, इशू है, राइट? अच्छा, एक व्हाट इज द रीजन फॉर दिस 44 AE में कंपनी को प्रेजेंटिव में लेने का क्या लॉजिक है? सबको अलाउ कर रखा है इसलिए? नहीं, इट इज ड्राफ्टिंग एरर और व्हाट इज इट? नो सर, ICAT 6 में स्पेशली डाला है, ड्राफ्टिंग एरर कैसे मान लूं मैं? तो सर वो बुक्स मेंटेन हो रही हैं, कंपनी की ऑडिट भी हो रहा है, देन वेयर इज द? अरे प्रेजेंटिव अलाउड है ना सर। आप क्या सोचते हैं सुनील जी, क्या कंपनी क्या इनकम टैक्स रिटर्न कैश बेसिस फाइल नहीं कर सकती? तो 44 AE में तो LLP को भी अलाउ होगा? नहीं है। हाँ अलाउड है, नहीं सही कह रहे हो, 44 AE में तो LLP को भी अलाउड है। अच्छा अच्छा, सॉरी, सबको अलाउड है ना सर? सबको अलाउड नहीं सर, मैंडेटरी है। मैंडेटरी होता है। हाँ मैंडेटरी है, अदरवाइज ऑडिट करना है। हाँ तो जैसा ये 44 AD और 44 AE साइमल्टेनियसली जा सकते हैं ना? अलग अलग बिजनेस के लिए जा सकते हैं। हाँ, एक ही पर्सन है, सेम पेन नंबर है, और वो 44 AD में एक बिजनेस डिक्लेयर कर रहा है और एक दूसरा 44 AE में कर रहा है, तो दोनों साथ साथ जा सकते हैं। जैसे कि 44 AD वाला 44 AD में नहीं जा सकता। यू आर राइट। 44 AE और 44 AD साइमल्टेनियसली हम ऑप्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, यू आर राइट सर, यू आर राइट। चलिए, नेक्स्ट इज अवर ESI and PF। यू नो, बहुत सालों से चल रहा था और इंस्टीट्यूट भी बहुत सालों से बोल रहा था कि भाई मेरा ये दो सेक्शन है, 36(1)VA एंड 43B, एक मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एक मेरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 43B 139(1) की ड्यू डेट से पहले जमा करा दो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सेक्शन कहता है एक्ट की ड्यू डेट से पहले कराओगे तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फिर दिल्ली हाई कोर्ट, अमील इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, एक आधा हाई कोर्ट, सबने कहा कि अगर ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी आप 43B 139(1) की ड्यू डेट से कराओगे तो मिल जाएगा। बट एक आधा अनदर हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, आपको ये इसके 36(1)VA के हिसाब से करना पड़ेगा। हम भी बोलते रहे कि भाई 2 दिन का डिले, 4 दिन का डिले, पूरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिसअलाउ। बट दिस टाइम हम इंस्टीट्यूट से भी बोलते रहे, हर प्रेजेंटेशन में मेरे को 2 बार मौका मिला, मैंने दोनों बार बोला, थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी देके बोला सर 2 दिन का डिले है, क्या रियल इनकम है। बट इस बार तो यूनियन बजट की स्पीच में ही FM मैडम ने बोला कि नो, इससे एम्प्लॉय को इंटरेस्ट लेट होता है तो हम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिसअलाउ कर रहे हैं। सो इन दिस केस explanation has been added for the employee contribution in both the sections, that this is to clarify that the provision of 43B does not apply and shall deem to never have been applied for determining the due date. तो क्वेश्चन इसमें सिर्फ यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव तो चलो 100% हम मान के ही चलते हैं कि आज अब इस साल जो ऑडिट करेंगे तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपको एड बैक करना है कंप्यूटेशन में, और एसएससी को बोल दो कि भैया तुम्हारी अगले महीने की 15 तारीख नहीं 14 तारीख या 13 तारीख लेके चलो, ताकि आपका ऐसा ना हो लास्ट डे में कोई दिक्कत आ गई तो पूरा का पूरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिसअलाउ हो जाएगा। उसको ये चीज बता के चलो, राइट। एंड रिट्रोस्पेक्टिव में लिटिगेशन चलेगी, और लिटिगेशन में कैसे क्या कितने दिन तक चलती है लेट अस सी। फाइट करते रहेंगे, कुछ एक केस में फेवर में, कुछ एक अगेंस्ट में है, तो इट विल गो अप टू हाई कोर्ट, राइट। बेसिकली जो डिसाइड हो चुके हैं उनको वो अफेक्टेड नहीं होंगे, जो डिसाइड नहीं वो उन्हीं पर लिटिगेशन चलेगा। यस सर, यस सर, यस सर। तो जैन सर, हेलो, हाँ बोलो ना सर। ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, कायदे से तो सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी जो होता है उस पे भी राइट तो है ही ना एम्प्लॉय का, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहो या क्या कहें इसको, चल रहा है सर बहुत सालों से, बहुत सालों से चल रहा है सर। हाँ, बहुत सालों से चल तो रहा है। जैसे इन्होंने ड्यू डेट का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में तो है, लेकिन एम्प्लॉयर में नहीं है ऐसा, तो ये दोनों में डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे भी उसका राइट है, क्योंकि एम्प्लॉयर लॉ है सर, लॉ बना दिया तो लॉ है। जेंट्स एम्प्लॉय में तो इसलिए हो सकता है ना क्योंकि वो तुमने एम्प्लॉय का पैसा रोक लिया है, एम्प्लॉयर का तो उसमें एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन वो तो अपनी तरफ से पैसे लगा रहा है,
नहीं, बट राइट तो सर उसका हो ही गया ना, पैसा नहीं तो राइट तो है, दैट इज राइट है ना। मतलब एम्प्लॉयर का इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का खुद का दोनों मिला के उसी का ही पैसा है वैसे देखा जाए तो। सर कुछ भी कह लो, लॉ यही है। हाँ, लॉ आप रीजन ढूंढते रहो, कुछ नहीं सुनना उन्होंने। लॉजिक कुछ नहीं है, बस लॉ है। गुडविल, यस, पहले वो मर्जर होता था, एक्स्ट्रा पैसे देते थे, गुडविल होता था, उस पर डेप्रिसिएशन लेते थे, ट्रीटिंग इट एज एन इंटेंजिबल एसेट। नाउ इट इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट, और इसके लिए बहुत सारे सेक्शंस के अंदर चेंजेस कर दिए। जो ब्लू में है वो अमेंडमेंट के अंदर आया, बाकी ओरिजिनल था। और सिर्फ ये है इसमें कि जो मार्च 20 तक डेप्रिसिएशन क्लेम किया वो कॉस्ट में से कम कर देंगे। वो कहते हैं गुडविल कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। अब मेरे बुक्स के अंदर गुडविल है तो मेरे को उसके अंदर इनकम टैक्स में तो मेरे को डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट क्या बुक्स में डेप्रिशिएट करना है? यस करना है, बिकॉज ऑफ AS 26। बुक्स में डेप्रिशिएट करूंगा, कंप्यूटेशन में ऐड बैक। नेक्स्ट सेक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, दैट इज 194Q एंड लास्ट। स्लम सेल भी तो था सर इसमें, पीछे वाले में। स्लम सेल नहीं सर, इसमें तो गुडविल है ना। दोनों आपने वो कर रखे थे ब्लू। स्लम सेल के अंदर भी कहा अगर कोई पोर्शन गुडविल का है उसकी वजह से आ रहा है तो गुडविल को उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये सारे सब चेंज किए सिर्फ ये इफेक्ट देने के लिए कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। राइट सर। नाउ 194Q। 194Q पिछले साल 206C1H 1 अक्टूबर 2020 से आया। सेक्शन क्या आया? वो ये आया कि मान लीजिए अगर कोई सेलर है, उस सेलर का पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस करता है फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज, एंड करंट ईयर में अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स ही रिसीव्स अ सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख, तो वो 50 लाख रुपए से ऊपर है जो उसको 0.1% TCS कलेक्ट करना है। अब सेक्शन तो ऐसा है कि एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, लेकिन कई लोगों ने इनवॉइस के ऊपर ही चार्ज करना चालू कर दिया। ने बोला भी, अब एक आधे मैंने छोटी सी वीडियो भी निकाली कि नो इट इज नॉट करेक्ट, बट दे स्टार्टेड। यहाँ तक कि मेरे को एक आधे सीए भाई ने बोला कि सर ये कैश इनवॉइस है, इस पे TCS 1% चार्ज। मैं कहा भैया ये तो अब आपका कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, आप जैसे मर्जी करो, इट शुड नॉट हैव बीन डन। अब इसका कोरस्पॉन्डिंग आ गया मेरा 1 जुलाई से 194Q, और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि मान लीजिए कोई बायर है, परचेजर है, और उस परचेजर का पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर गया, तो इस साल जब भी वो कुछ बाय करेगा एनी गुड्स फ्रॉम अ रेजिडेंट, इन दैट केस एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिट whichever is earlier for an amount exceeding 50 lakhs during the year, he will have to deduct TDS at the rate of 0.1%. तो सेलर को TCS कलेक्ट करना है, बायर को करना है TDS 0.1%। एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन। फर्स्ट एक्सेप्शन कि अगर उस ट्रांजैक्शन पे किसी और सेक्शन में TDS डिडक्ट हो गया तो इस सेक्शन में TDS डिडक्ट नहीं होगा। एग्जांपल 194C में डिडक्ट हो गया तो इसमें नहीं होगा। सेकंड केस कि अगर TCS कलेक्टिबल है 206C में एक्सक्लूडिंग 206C1H, तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा। 206C में कौन से हैं? टिम्बर, लिकर, स्क्रैप, टेंडू लीव्स, मोटर कार, इन सब के ऊपर TDS डिडक्ट नहीं होगा, बाकी सब पे होगा। तो यानी दोनों साइमल्टेनियस है। और मेमोरेंडम क्या कहता है मेरा कि ऑन अ ट्रांजैक्शन ऑन व्हिच बोथ TDS is deductible and TCS is collectible, then on that transaction only TDS shall be there, but it is not given in 194Q। 194Q में ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे आया, क्यों आया, कहां पे। एक समझते हैं कि 50 लाख की कंडीशन तो मिट आउट हो रही है। पहला केस जहां पर कि टर्नओवर पिछले साल में सेलर की 10 करोड़ क्रॉस कर गई थी 25 करोड़, लेकिन बायर की क्रॉस नहीं की। यहाँ पे ओनली एंड ओनली TCS, क्या सर? ओनली एंड ओनली TCS होगा यहाँ पे। सेकंड केस, सेलर का 10 करोड़ क्रॉस नहीं किया लेकिन बायर का 10 करोड़ क्रॉस कर गया, ओनली एंड ओनली TDS। थर्ड केस,
पिछले साल में जो टर्नओवर थी दोनों की 10-10 करोड़ क्रॉस कर गई, 25-25 करोड़। तो बायर एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट सबसे पहले टीडीएस काटेगा। तो जैसे ही उसने टीडीएस डिडक्ट किया, उन दैट केस 2061H आ जाएगा। और वो 2061H कहता है अगर किसी ट्रांजैक्शन पे टीडीएस डिडक्ट हो गया तो उस पे टीसीएस नहीं होगा। सो दिस मेमोरेंडम जो कह रहा है वो 206CH से आ रहा है, नॉट 194। अब इसको अपन एक और एग्जांपल से समझते हैं, बड़ा सिंपल सा लग रहा है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर सेलर है जिसको 2061H है, बायर है जिसको 194 की है, और हमने फाइनेंशियल ईयर एंडिंग लिया, मार्च 21 की बात करें। मार्च 21 में तो टीडीएस था ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। 80 लाख की सेल की, टीडीएस है ही नहीं। इसने पेमेंट की 40 लाख की, 50 लाख से नीचे है, नील टीसीएस। बैलेंस 40 लाख, 80 माइनस 40 आ गया अगले साल ओपनिंग। इस साल सारी की सारी ट्रांजैक्शन 1 जुलाई के बाद। इसने सेल की 50 लाख की, 50 लाख एक्सीड नहीं किया तो पिछली बार नॉट एप्लीकेबल था, इस बार नील। लेकिन इसे पेमेंट की 60 लाख की, 50 लाख क्रॉस कर गया तो 10 लाख के पर टीसीएस कलेक्ट करेगा। बैलेंस रह गया 30 यहाँ ओपनिंग आ गया। इस साल इसने सेल की 80 की, 50 क्रॉस कर गया, 30 के ऊपर टीडीएस। पेमेंट किया 50 का, 50 एक्सीड नहीं किया, नील। बैलेंस 60 यहाँ ओपनिंग आ गया। 80 लाख की सेल की, -50, 30 पे फिर टीडीएस काट लिया, नील करना था। 140 की पेमेंट की। क्वेश्चन है टीसीएस कितने पे काटूं? 140 माइनस 50 90 पे, या फिर ये 60 के ऊपर मेरा टीडीएस डिडक्ट हो गया 30 पे, या फिर कहूं ये जो मेरा पहला वाला 30 था ये एग्जेम्प्टेड 50 में से था तो +30 कर दूं 60 पे। तो ये इशू रहा है, ये इशू रहा है। बट सर ये जो 2021 का पेमेंट बाकी था ना 40 लाख, हाँ, तो वो नेक्स्ट ईयर में जब आएगा सेलर के पास तो उस केस में तो सेलर ही 2061H करेगा ना, बायर थोड़ी करेगा। नहीं, अगले साल सेलर को तो ये देखना है ना 50 से क्रॉस किया कि नहीं किया। हाँ 50 से क्रॉस किया, हाँ तो 10 लाख पे टीसीएस काट लिया ना उसने। हाँ 10 लाख पे काटा, 10 लाख रिसीव होगा मतलब ये। नहीं 10 क्यों, 50 को एक्सीड कर गया ना। या ठीक है, नेट में 10 पे काटा उसने। हाँ। नहीं बट सर 22 में तो एक चीज बताओ जनरल, 2022 में तो ये टीडीएस भी आ गया है। हाँ तो पर 50 क्रॉस नहीं किया ना तो नील। 50 तो दोनों भी क्रॉस नहीं किया। अच्छा, तो वो पुराने वाले 40 में से 10 पे काट रहा है, ये कह रहे हैं फिर अपन। सर पुराना नया कुछ नहीं ना, मेरे को तो एवरी ईयर देखना है ना भाई। सर पेमेंट बेसिस पे, वो पेमेंट बेसिस पे बता रहे थे ना सेल में, तो सर आप सर सेल में रिसिप्ट बेसिस पे है। हाँ रिसिप्ट बेसिस पे, सॉरी। तो मैंने तो हर साल की रिसिप्ट देखनी है ना मेरे को। तो 60 लाख क्रॉस कर गया ना, 50 लाख क्रॉस कर गया तो 10 पे कर रहा हूँ। यहाँ पे 50 लाख क्रॉस कर गया 90 पे कर रहा हूँ। ओके, तो सर 206C1H में जो एप्लीकेबिलिटी मैं देखूंगा वो रिसिप्ट बेसिस पे देखूंगा, ना कि सेल बेसिस पे। है ही सर रिसिप्ट बेसिस पे वो तो। नहीं 50 लॉ लाख यही है। लिमिट भी सब उसके बेसिस पे होगी। हाँ ओहो, ये कंफ्यूजन था सर। वो भी एक्सीडिंग 50 लाख है ना भाई। तो सर इसका मतलब 21 में भी पुराना पेमेंट आएगा इस ईयर में, वो भी काउंट होगा फिर तो 50 लाख की। तो मेरे को तो एवरी ईयर देखना है ना। ओके, मतलब किसी भी ईयर से कनेक्टेड है, पेमेंट आनी चाहिए बस। हेलो, और सर 194 क्यू में क्राइटेरिया परचेज का रहेगा, फिर पेमेंट उसमें तो परचेज का रहेगा ना। परचेज और पेमेंट, क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। हाँ एडवांस देगा तब भी, परचेज करेगा, क्रेडिट देगा तब भी। एंड प्लीज टेक केयर, उसको तो 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना ही करना है 50 लाख से ऊपर, नहीं तो परचेज का 30% डिसअलाउ हो जाएगा। परचेज का 30%। या इन बोथ द केसेस हमें पेमेंट और रिसीप्ट बेसिस पे देना है, ये है। यस, लिमिट जो चेक कर रही है टीडीएस का प्रोविजन, टीडीएस का जो प्रोविजन है वो तो पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर अर्लियर की एप्लीकेबल है ना। यस यस।
लिखा हुआ है, सेक्शन में लिखा हुआ है सर। टीडीएस काटने की सारी सेक्शन ये पेमेंट और whichever ले रहे लिमिट के लिए, तो फिर हमारा पेमेंट एडवांस भी आ गया तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा ना। ये 50 लाख। हाँ 50 लाख की लिमिट क्रॉस मान ली जाएगी ना, परचेज से लेना देना नहीं हुआ ना सर फिर इसमें। परचेज अगर 50 से ज्यादा पहले होगी, पेमेंट से पहले होगी तो कट जाएगा। अगर पेमेंट से पहले 50 की परचेज हो गई तो कट जाएगा। हाँ हाँ, तो जो नॉर्मल प्रोविजन हमारा टीडीएस का है कि पेमेंट और परचेज whichever is earlier, credit whichever is earlier, वही प्रोविजन यहाँ एप्लीकेबल हो गया। वो तो है ही सर, केवल टीसीएस में है कि पेमेंट के बेसिस पर हमारी लिमिट है, रिसिप्ट के बेसिस पे है, उसमें भी 50 लाख क्रॉस करेगा तब है। अब है और एक्सीडिंग पर है, 50 लाख तक लिमिट ब्लॉक है। सर टीडीएस के लिए तो परचेज और पेमेंट जो ये अग्रवाल जी बोल रहे हैं, whichever earlier जो पहले हो जाएगा उसके एक्सीडिंग 50 लाख। हाँ, एक्सीडिंग 50 लाख जो भी पहले हो जाएगा, परचेज के बेसिस पे, पेमेंट के बेसिस पे लिमिट क्रॉस हो जाएगी, एप्लीकेबल हो गया, उसमें सोलिली केवल रिसिप्ट के बेसिस पे होगा। हाँ। लेकिन सर एक चीज और है, टीडीएस में जब ये लिमिट एक्सीड करती है तो वो ये कहते हैं ना कि पूरी फिगर पे टीडीएस कटता है ना एक्सीडिंग 50 लाख ही है। नहीं, इसमें 50 लाख है, अदरवाइज और जो टीडीएस के प्रोविजन है हर एक में डिफरेंट है। यू आर राइट, हर एक में डिफरेंट। तो यहाँ इसको डिफरेंस क्यों कर दिया सर? क्यों कर दिया का मेरे पास आंसर नहीं है, कर दिया। बट सर प्राइस में भी सर ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल है 190 जुलाई से, तो 30 जून तक तो फिर 2061H ही इनवेरिएबली जाएगा हमारा। यस सर, लेकिन जब मैं 50 लाख कैलकुलेट करूंगा तो पूरे साल के करूंगा अप्रैल से, ये भी ध्यान रखना। हाँ लिमिट के लिए 50 करेंगे, लेकिन टीडीएस करने के लिए 50 से ऊपर पे कटेगा। हाँ जी। संजय गुप्ता जी, एक क्वेश्चन है, इफ वी डेबिट टू कस्टमर फ्रॉम स्टार्टिंग डे एनी इश्यूज आर क्लाइंट नो वी विल एक्सीड 50 लाख। नहीं, डेबिट किस चीज का, डेबिट किस चीज का करते जाओगे सर? आप बायर हो कि सेलर, उस पर डिपेंड करता है। संजय जी, आप सेलर हो ना, तो सेलर हो तो पहले दिन से क्यों 50 लाख क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर ही तो लेना, उससे पहले तो लेना ही नहीं है। रिसिप्ट पे, रिसिप्ट पे ना बात हो तो भाई साहब डेबिट करने का मतलब ही नहीं है। हाँ सर, क्लाइंट जो कर रहा है, मैं जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा आई विल प्रिपेयर दैट टैक्स ऑडिट सीरीज, जिसके अंदर मैं ये सारे पॉइंट को कहीं ना कहीं डालूंगा। जैसे पहले आपने डाली थी सीरीज एक। हाँ मैं करूंगा सर, टाइम मिल नहीं पा रहा। जैन साहब अभी भी सर मेरा हो सकती है 6 बजे मेरा एक सेकंड। हाँ सर, मैं इसलिए एक कह रहा हूँ कि मेरा ना 6 बजे एक इम्पोर्टेंट सेशन है, तो मैं 6 बजने में 5 मिनट पे निकल जाऊंगा। ओह सॉरी सर, आप करिए सर। तो सर ये फिर 147 को अगर टेकअप कर लें क्या? हाँ करता हूँ, अभी है मेरे पास टाइम। हाँ। एक धनंजय जी का है, इफ टर्नओवर इज 1.75 करोड़ एंड प्रॉफिट इज लेस देन 8% ऑफ द टर्नओवर देन ऑडिट। सर ऑडिट तो तब होगा ना, डिपेंड करता है आपका कि आपका अब 1 करोड़ क्रॉस कर गया। अब 1 करोड़ क्रॉस कर गया तो कैश वाला पोर्शन देखो पहला। तो अगर आप वो 8% वाली कहानी कर रहे हैं तो पहले चेक करो कभी 44 AD पहले लिया कि नहीं लिया। तो आपको वो 44 AB की 500 क्लॉजेस में देखना है। एक हमारा ये सेशन है 25 तारीख को टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का, जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉमनली फाउंड एरर्स एंड टॉकिंग अबाउट बेसिक सेक्शन 44 AB एंड 3CA 3CB। तो उसके अंदर हम ये दोबारा एक बार सारा कवर करेंगे। कितने बजे है सर? वो है सर 4 से 6, 25 तारीख को। 25 तारीख को आई विल बी सेंडिंग द लिंक, आजकल में मैं भेज दूंगा आपको। ईमेल भी आया होगा, हर एक के पास आ चुका होगा। आ चुका सर। सर सेल बिल में जो लगा रहे हैं वो पहले भी गलत कर रहे थे, अभी भी गलत कर रहे हैं। और गवर्नमेंट तो हैप्पी है, बायर भी दो सेलर भी दो, गवर्नमेंट का क्या जा रहा है। अच्छा है सब आप अपना कैमरा सेट कर लीजिए, आपको फोटो साफ वो नहीं आ रहा, पूरा नहीं आ रहा, कि थोड़ा ऊपर जा रहा है। हाँ ऊपर जा रहा है, आपका ऊपर जा रहा है। हाँ अब थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा ठीक, अब बिल्कुल सही हो गया, अब बिल्कुल सही हो गया। ठीक हो गया। चलिए, ये टीडीएस टीसीएस और नॉन आईटीआर फाइलर्स सबको पता है, मेरा सेक्शन है 20। अब एक काम करते हैं, पहले अपन 147 148 के क्लॉजेस ले लेते हैं, उसके बाद इनके ऊपर आ जाएंगे। लेट अस गो फॉर असेसमेंट। पहला तो ये है कि मेरा 143(1)
इसके अंदर मेरा टाइम पीरियड कम हो गया, फ्रॉम 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर टू 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन वो मैंने एक्चुअली सब सीरीज बना रखी थी, तो उस पे है कि पहले एक मेरा स्लाइड थी जहां पर मेरी ITR की ड्यू डेट है। तो एक तो दोस्तों ध्यान रखना कि इस साल जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर ही है ITR की, और रिवाइज रिटर्न की उन्होंने चाहे अब इस बार कर दी 31 जनवरी, लेकिन 31 दिसंबर के बाद कोई ITR फाइल नहीं हो सकती, ना रिवाइज ना रिटर्न। तो जो मेरी अभी ना रिवाइज ना डिलेड, हाँ ओरिजिनल तो हो नहीं सकती, रिवाइज और डिलेटेड भी कुछ भी नहीं होगा, रिटर्न फाइल ही नहीं होगी। जो 31 मार्च को क्लाइंट हमारे ऑफिस में बैठा करते थे, अब उनको बोलना है आपने नया साल हमारे साथ मनाया। लेकिन ये वही क्लाइंट है जिनके आगे मैं ढीला पड़ जाता हूँ, जिसको मैं अलाउ करता हूँ कि मेरा वो बेनिफिट ले। वरना मेरे को ये बोलना है कि भैया 31 तारीख को मेरी छुट्टी है, मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ, आना है तो 30 तारीख को आ जा, उससे पहले आ जा। ये मेरे में दम होना चाहिए, नहीं तो फिर बैठा हूँ मैं भी 31 दिसंबर को ITR सबकी फाइल कर रहा हूँ। असेसी भी तो कह रहा है मेरा CA है जो लास्ट में मेरे लिए वेट करेगा, नहीं तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। गवर्नमेंट ने 31 जनवरी दे दी, खत्म करवा दो, 31/12 को तो घूमने चले जाएंगे। 31 जनवरी मेरी वो रिवाइज और बिलेटेड की है ना। हाँ जी, हाँ जी। सो जो भी है इस साल की बात है तो हर साल की बात होगी भाई, सब तो थोड़ा ध्यान रखना है। एक्चुअली आई हैव टू टेक एडवाइज माय क्लाइंट टू कम ऑन टाइम। बेसिकली मेरे को जरा थोड़े से रूल सेट करने पड़ेंगे, प्रोफेशनली पोलाइटली, ऑफ कोर्स प्रोफेशनली पोलाइटली, उसका ध्यान रखते हुए अपना भी ध्यान रखते हुए, मेरी भी तबीयत है, मेरी भी फैमिली है भाई, ध्यान रखें। 143(1) की एडजस्टमेंट वो क्या होता था कि अगर ऑडिट के अंदर मेरा कोई डिसअलाउंस होता था और मैंने कंप्यूटेशन में नहीं किया तो वो एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर सकते थे CPC में 143(1) में, बट अगर कोई इनकम में दिखाता था उसको नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इनकम भी अलाउ कर दिया। अनदर पॉइंट इज कि मेरा जो चैप्टर 6A की पार्ट C की डिडक्शन है। नमस्कार भाई। जैसा आपका वो अजय जी, आपका फोटो नहीं आ रहा पूरा। हेलो, आप दिखाई नहीं दे रहा अजय जी? हाँ आ गया फोटो आ गया। हाँ, अभी भी थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो। ठीक है जन साहब, हाँ कैरी ऑन सर। तो उसको चैप्टर 6A के पार्ट C का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले मेरे को कुछ सेक्शन दे इसमें, अगर मेरी बिलेटेड रिटर्न है बता देना 80H ऑनवर्ड्स कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। एंड ये नोटिस जो 143(2) का है वो भी 6 महीने से 3 महीने कर दिया, लेकिन उनके पास फिर भी 6 महीने आ गए। अब मेरा बात आती है रीअसेसमेंट एंड सर्च। देखो, एक पहली बात तो ये, आज की डेट के अंदर मैं अगर रीअसेसमेंट की बात करूं तो मेरा 148 में आज की डेट में मेरे को क्या है कि पहले वो मेरे को नोटिस देते हैं, 6 साल तक का कोई भी केस पुराना आ सकता है, 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। और फिर वो जब आता है तो आई आस्क फॉर अ रीजन, क्योंकि बिकॉज द AO हैज द रीजन टू बिलीव। फिर मेरे को 148 का नोटिस देता है, उसके अगेंस्ट में अपनी रिटर्न फाइल करता हूँ। फिर जब वो क्वेश्चन देता है तो मैं उसको ऑब्जेक्ट करता हूँ 148 को, फिर वो मेरे को रीजन अप्लाई करता है। तो वो 31 मार्च तक की तो जो डेट थी उसके लिए मेरे पिछले 6 साल का पीरियड है, उसको अभी उन्होंने एक्सटेंड किया है थ्रू दैट नोटिफिकेशन विच इज देयर for the taxation and other laws ordinance, amendment ordinance which was there to give the relaxation। तो उसको 30 जून तक दिया है। तो 30 जून तक मैं अभी असेसमेंट ईयर 13-14 और उसके जो मेरी रिटर्न्स हैं उसको 148 में असेसिंग ऑफिसर दे सकता है। क्वेश्चन हमेशा ये आ रहा है कि सर 31 मार्च के बाद तो नया 148 सेक्शन आ गया जहां पर 6 साल से घटा के उसको 3 साल कर दिया गया। अब आप ये देखें कि लीगली अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात पुराना सेक्शन नहीं होना चाहिए, बट वो जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है उसके अंदर रिलैक्सेशन है, और रिलैक्सेशन सभी के लिए, नॉट ओनली असेसिंग, इवन असेसिंग ऑफिसर। सो इट वुड बी अ पॉइंट ऑफ लिटिगेशन कि एक नया एक्ट चालू हो गया उसके बाद भी पुराने वाले को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे को अपनी जो रिटर्न थी असेसमेंट ईयर 20-21 की,
उसको भी फाइल करने का टाइम मेरे को एक्सटेंशन मिला, तो 148 के नोटिस को मैं चैलेंज ही कर सकता हूं ना। और जब मैं चैलेंज करूंगा तो कैसे करूंगा? अभी क्या किया है, अभी इसमें एक ये भी इशू है 148 में, ये भी इशू है कि नोटिस आए जुडिशनल एओ से, और उसके अगेंस्ट में हमारे को नोटिस में हमको रिटर्न फाइल करनी थी, हमने रिटर्न फाइल कर दी। नाउ नो वन नोज दैट व्हाट वुड बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। Will the jurisdictional AO will do manually, or it would be done by NEAC? If I see the faceless assessment notification, in that case 148 assessment, 47 assessment has to be done online, faceless only. So one theory is that after this period of 30th June, all these cases would be transferred to NEAC by the internal order. And jurisdictional AOs will not be doing it. They are still currently not doing any order. So इसका क्या प्रोसेस होगा? जब NEAC में आएगा तब मेरे को 148 के नोटिस को चैलेंज ऑनलाइन करना पड़ेगा। कुछ लोग रिट पिटीशन में गए हैं, लेट अस सी, अभी तक किसी का कोई जजमेंट आया नहीं, बट ऑफ कोर्स द ओनली वे आउट इज चैलेंज इट एंड देन गो ऑनलाइन टू get the assessment done, and if the addition is made, go for an appeal taking that the issue of section notice under section 148 was invalid as it was issued after 31st March 2021. But again, the only way is litigation at the end. या तो अभी रिट पिटीशन में जाए, लेकिन रिट पिटीशन से अल्टीमेटली जो मेरे को एक हल्की सी फीलिंग है पर्सनली, ये फीलिंग है कि कोर्ट वुड से यू हैव गॉट दैट प्रोसेस ना, गो टू दैट प्रोसेस, व्हाई एवरीवन इज कमिंग फॉर रिट पिटीशन। बाकी वही चलेगा जैसे चल रहा था पुराना। अब नए में क्या हुआ है? नए जैसा एक क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि जुडिशनल एओ से नोटिस आया हमारे पास, और वो हो सकता है कि बाद में एनईसी को ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन 147 की रिक्वायरमेंट ये है कि जो एओ नोटिस भेजेगा वही असेसमेंट कंप्लीट करेगा, अदरवाइज तो वो फिर इनवैलिड है, वाइड इनवैलिड है वो ऑर्डर। देखते हैं वो क्या करते हैं, हो सकता है मैनुअली कर दें। The AO who is issuing the notice, who has recorded the reason to believe, he has to make the order, assessment order. No one other person can do that. But पीछे तो सर ऐसा भी हुआ था ना, मान लीजिए एक AO ने 148 का नोटिस दिया, and later on it was found that his jurisdiction was not correct, but then it was transferred through the internal memo to another AO. So again, all these points would be what you are saying, Agarwal. लेकिन वो भी इनवैलिड होगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो है ही नहीं इसका, सेकंड वाले का। एग्रीड, तो होगा क्या? लिटिगेशन में जाएंगे ना। लिटिगेशन का नोटिस ही इनवैलिड हो जाएगा सेकंड वाला। अरे सर, तो आप प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएंगे? नहीं, प्रोसीडिंग में जाएंगे, लेकिन इनवैलिड नोटिस तो इनवैलिड हो ही जाएगा ना। प्रोसीडिंग में जाएंगे विदाउट प्रेजुडिस। आईटीएटी लेवल पे होगा ना सर? हाँ, आईटीटी लेवल पे होगा ना, तो वो तो ठीक बात है। सीआईटी अपील भी नहीं मानेगा, वो तो आईटीटी लेवल पे ही होगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ सर कि आप अपना ऑब्जेक्शन रेज करना जब अप्रोप्रिएट टाइम हो। मैं और आप, वी आर टॉकिंग द सेम टर्म्स। व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, देयर वुड बी इश्यूज ऑफ जुरिसडिक्शन and we should raise that as an objection. Yes. And that objection he may or he may not, because then I have to take the objection of jurisdiction as well as the reason in my 148. He'll have to pass a speaking order to remove my objections. Yes. Suppose he doesn't do it, then what? Then I have to go for merits. Yes. Then if the order is against me, I'll take all those grounds while filing up my CIT appeal. Right. यही प्रोसेस रहना है। Right. But the only thing is, yes, आपका कहना बिल्कुल सही है। I have to take that jurisdictional issue and object that in my submission when I make for the submission for the reasons and other things. Yes. बाकी सारा प्रोसेस सेम रहना भाई, नहीं? Yes. उस केस में रिटर्न तो भर ही देना, जैसे कुछ भरनी पड़ेगी। वो तो भरनी पड़ेगी। ऑप्शन क्या है? जो नोटिस हमारे इसमें 31 मार्च से पहले आ गया, उनके लिए तो कोई ऐसे लिटिगेशन वाला पॉइंट है नहीं, उनके लिए तो नॉर्मल तरीके से चले। पता नहीं ना सर, हो सकता है अगर उसको फेसलेस मिलेगा तो फिर जुरिसडिक्शन इशू आ जाएगा। जो जुरिसडिक्शन इशू तो फिर भी आएगा ना।
अच्छा ओके। तो आई हैव टू गो स्टेज वाइज। मैं अगर उसकी कंप्लायंस नहीं करूंगा सर, ना एसएससी का फायदा हो रहा, ना प्रोफेशनल का हो रहा, ना डिपार्टमेंट का हो रहा। विदाउट प्रेजुडिस मैं अपने राइट के सबका सारे काम करूंगा, प्रोसीडिंग सारी करूंगा। प्रोसीडिंग तो सारी करूंगा ही ना सर, बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो फीस लोगे ना सर। फीस भी लेंगे और बनता भी वही है। हाँ, राइट सर राइट। अपने को साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज अपने को पूरी रखनी है और उसको यूज करनी है आगे। हाँ जी ठीक है। जी। पुराने वाले में और कोई इशू नहीं? चलिए ग्रेट। क्योंकि ना सर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट हम चाहे 2 घंटे डिस्कस करें, एंड रिजल्ट ये निकलेगा, या रिट पिटिशन करो या फिर आप अपना ऑब्जेक्शन करो एंड देन गो विद सीआईटी अपील एंड आईटीएटी। अगर जैसे पुराने वाले में उन्होंने अभी 17-18 तक का उन्होंने दिया है, 13-14 से लेके 17-18 तक का वो इशू कर सकता है 31 मार्च तक, जो कि 30 जून कर दिया। अगर इन केस उन्होंने 18-19 का 31 मार्च से पहले नोटिस इशू कर दिया था, तो वो तो फिर हमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना प्रोसीडिंग। हाँ करनी पड़ेगी, पर उसमें भी हो सकता है ना कोई जुरिडिक्शन इशू आ जाए। नहीं, जुडिक्शियल इशू अलग बात है, बट वो प्रोसीडिंग तो करनी पड़ेगी ना। जैसे कि हम कह रहे हैं 17-18 तक ही होगा पुराने वाले में, बाकी सारा नए में जाके होगा 148A के हिसाब से। बट अगर 18-19 का उसने नोटिस 31 मार्च से पहले इशू कर दिया है, तो वो तो पुराने वाले में असेसमेंट होगी ना। बिल्कुल सर, पुराने वाले में ही होगा। तो सर आप समझो कि 147 में कोई चेंज नहीं आया। ऑर्डर तो 147 रेड बेस 143 होना है ना, प्रोसीजर में चेंज आया है। हमने सब मान लीजिए कि उसने आपको नोटिस दे दिया असेसमेंट ईयर 10/11 का, 6 साल से पहले क्या नहीं दे सकता, बट दे दिया, तो आप क्या करोगे? रिस्पॉन्ड करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप फिर कहोगे कि इनवैलिड है, फिर या तो उसको वो ड्रॉप करेगा। तो प्रोसीजर तो सब फॉलो करना ही पड़ेगा। फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये मैं बस मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसा तो नहीं कि 18-19 का वो पुराने वाले में इशू नहीं कर सकता था मार्च से पहले? नहीं कर सकता सर, बिल्कुल कर सकता, तो उसका राइट था ना। हाँ यस सर, बस ये, हाँ बस यही कंसर्न था। नहीं, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, यू आर राइट। और अब जो सर्च के केसेस हैं 153A 153C में नहीं होंगे, जो भी सर्च कंडक्ट हुई है 31 मार्च 2021 के बाद, और वो जो ब्लॉक 6 साल का होता था, वो ब्लॉक 6 साल की जगह 3 साल का रह जाएगा। एंड 148 में पहले था रीजन टू बिलीव, अब रीजन टू बिलीव की जगह एनी इंफॉर्मेशन which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment. And what is this information? 3 केसेस उन्होंने डिफाइन किए हैं, 4 केसेस है, 3 में समराइज कर रहा हूं कि बेसिकली अगर इफ इन केस इट इज इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड, उनके पास जो इंफॉर्मेशन है सारी की सारी कवर्ड। सेकंड, वेयर एनी फाइनल ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाय द सीएजी, ये पीएसयूज वगैरह में कोई ऑब्जेक्शन है। अब पहले क्या होता था, वो ऑब्जेक्शन रेज कर देते थे तो उसमें रीजन टू बिलीव वो सारी कहानी होती थी। अब तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया, और ऑब्जेक्शन है तो पहले मेरे को वो 148 का नोटिस देंगे, 148 का देंगे, मैं उसमें अपना रीजन दूंगा, तब जाके 148 में आएगा। इससे पहले तो ऐसा होता ही नहीं था, वो रीजन टू बिलीव में हमारी बात सुनते नहीं थे, सीधा 148 में आ जाते थे। बेसिकली चेंज ये हुआ कि 147 148 एज इट इज है, 148A का एक्स्ट्रा बढ़ गया, जो कि पहले काम करना है उसने 148A का, उसके बाद 148 और 147। यस, और उनके ऊपर एडिशनल आ गया कि ऐसी नहीं किसी भी केस को दे दो, और पास करना पड़ेगा उसको। यस, ऑर्डर पास करना पड़ेगा फॉर टेकिंग द केस अंडर 148। और सर्च के अंदर 3 साल, सर्वे एक्सेप्ट जो टीडीएस का सर्वे है या फिर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सर्वे होता है, और रिक्विजिशन केसेस में 3 साल। इन केसेस के अंदर 3 साल, बाकी के अंदर जो रेलेवेंट ईयर उस साल का, राइट। एंड 148A आ गया नया सेक्शन, जहां पे सर्च और एक्सपेंडिचर क्या बताया सर आपने? एक्सपेंडिचर में क्या, मान लो किसी के यहाँ खर्चा है, उसके बेस के ऊपर सर्वे में चले गए, हाँ, तो उस केस के अंदर 3 साल का नहीं होगा, उसका साल में 1 साल का ही होगा, रेलिवेंट ईयर ही होगा। हाँ, बाकी सब केसेस में 3 साल। लेकिन 148 का जो नोटिस आएगा, उसके अंदर सर्वे के केसेस के अंदर भी 148 का नोटिस आएगा। सर्च और रिक्विजिशन केसेस को एक्सक्लूड किया सर 148 में, तो कोई भी सर्वे का केस होगा उसमें पहले 148 आएगा। एंड इन दिस केस दे विल
कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड इन दैट केस अप्रूवल लेके इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, फिर ऑर्डर पास करेंगे, अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी से, तब आपको 148 का नोटिस देंगे। तो 3 साल का ही रहेगा, आप 6 साल की जगह 3 साल। सो अ ह्यूज 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 बेनिफिट। तो सर सर्च ऐसे ही नहीं कर सकते, मतलब कि अपॉर्चुनिटी के बाद? नहीं सर्च अलग है। इसका मतलब ये हुआ जैसा सर्च, ओके सॉरी सर्च एंड सीजर्स को ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी टू ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देंगे इसका मतलब। सर्च और रिक्विजिशन के केस के अंदर वो मान के चलेंगे वो 148 है, उनके पास रीजन टू बिलीव, दैट इज एन इंफॉर्मेशन। 148 है। हाँ हाँ, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देंगे उसका। हाँ वो प्रायर नहीं देंगे, बाद में देंगे। बाद में देंगे, बाद में तो स्क्रूटनी चलेगा ना, प्रॉपर 148 चलेगा ना, तो चलेगा, वो तो चलेगा। हाँ वो तो चलेगा। 148 की अपॉर्चुनिटी देंगे। यस। एंड 3 साल का है, 6 साल से 3 साल का हो गया। लेकिन इन केस AO हैज एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट दैट द अमाउंट इज और लाइकली टू एक्सीड 50 लाख रुपीज, तो 10 साल का पीरियड है इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट। तो फॉर्म ऑफ एसेट में उन्होंने डिफाइन किया एक्ट के अंदर, फाइनली अमेंड करके, दैट एक्ट शैल इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस डिपॉजिटेड बैंक अकाउंट। तो एक्सपेंडिचर्स कम नहीं होंगे, एसेट है कोई तभी होएगा, वरना नहीं होएगा। और डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट इंक्लूड सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एवरीथिंग। हाँ या एफडी या केवल एफडी? नहीं, डिपॉजिट इन बैंक इज एनी डिपॉजिट ना, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। हाँ, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, व्हाटएवर इट इज, डिपॉजिट में सब कुछ आ गया। हाँ जी, हाँ जी। पहले ही होता था कि मेरा अगर 148 में नोटिस आया तो जो रीजन से आया, और अगर उस रीजन के बेस पे एडिशन नहीं हुआ तो किसी और चीज पे एडिशन नहीं कर सकता। नाउ व्हाट दे हैव सेड, in case the proceeding under 147 has started, they can decide on any issue even if 148 is not complied with. एक बार आ गया तो उसके बाद किसी और पे भी दिख सकते हैं। But they have to issue 148 new नहीं for that item. ना आइटम वाइज कहाँ होता था पहले? क्या होता था 148 का? अभी की भी कह रहा हूँ, अभी भी नहीं होता ना। अभी सर मान लो 148 का नोटिस आया, जिसमें आया आपका बैंक के अंदर आपका कोई शेयर का ट्रांजैक्शन था, फिर आपका स्क्रूटनी केस किया तो शेयर के ट्रांजैक्शन के साथ और भी एडिशन कर दिए, उसका भी किया, इसका भी किया, वैलिड है, दोबारा 148 नहीं आता। लेकिन मान लीजिए शेयर का ट्रांजैक्शन नहीं किया, बाकी पे कर दिया, कहते भैया जो तुम्हारा रीजन था तो आपका 148 इनवैलिड हो गया। अब वो कहानी खत्म हो जाएगी। तब इसको बढ़ा दिया, किसी भी आइटम पे कर सकता है। अगर एक बार 148 में आ गया तो किसी भी आइटम पे 148 कर सकता है। यस प्रोसीडिंग ऐसे कैसे? यस ये तो गलत है फिर सर। है लॉ ऐसे ही है सर, करेक्ट है। आपको एक बार जो नया जो आया उसने एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या लगाया? उसने एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाया, बट उसकी वजह से कुछ और पकड़ में आ गया। सर ये तो 143(3) क्या हो गया फिर? तो पेंडोरा हो गया, फिर तो कुछ भी कर लेगा ब्रो। नहीं सर 3 साल का पीरियड है ना, रेगुलर असेसमेंट हो गया ना। हाँ बट होगा सर NESE में, देख लेट अस सी, NESE में होगा ना। नहीं वो जहां भी होगा, लेकिन एक आइटम के अलावा दूसरे आइटम को 148 पे बिना किसी रीजन के, बिना किसी एप्लीकेशन के करना, ये तो जमती नहीं है बात। हो सकता है ना, जमती क्या नहीं है। आप मुझे बताओ, आपका केस आया अनसिक्योर्ड लोन की वजह से, आपने जब वो सारी डिटेल्स दी तो उसके अंदर लोन लेना और देना, आपने देखा कि इंटरेस्ट नहीं दिया, इंटरेस्ट दे रखा है, लेकिन लोन से रिलेटेड है। अगर कोई चीज तब तो कर सकता है। लोन के सामने लोन पे अगर 148 आया और उसने सेल पे मेरे को 148 एडिशन कर दिया तो वो नहीं करेगा ना सर। अब उनके पास सब कुछ है। तो फिर सर डिफरेंस क्या रहा नॉर्मल में और इसमें? वो तो फुल असेसमेंट कर देगा वो तो। सर इसके अंदर आपको पहले तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी ना कि आपने कुछ एवेड किया है, तभी तो आएगा। नहीं, प्रोसीडिंग में जब प्रोसीडिंग चल रही है मेरी, जब मेरी प्रोसीडिंग चल रही तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अरे सर पहले आपको बोलेगा ना, इन्फॉर्मेशन देगा आपको, पहले आपने उसका रिप्लाई दिया। हाँ उस रिप्लाई में तो कुछ मिल गया, और मैं वो रिप्लाई से वो मेरे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तभी तो ये ऊपर से अप्रूवल लेगा वो। तो इसका मतलब अप्रूवल उसने ली ना 148 की दूसरी आइटम के लिए। मैं यही तो कह रहा हूँ, सर एक बार लेगा ना, बस बार थोड़ी लेगा। और सर एक बार 147 में आ गया, केस चालू हो गया, फिर बार थोड़ी लेगा। 148 की जरूरत नहीं है।
सर फॉर्म ऑफ एसेट का मतलब यही हुआ ना कि उसको एक पर्टिकुलर एसेट में 50 लाख से ऊपर का वो है उसका एविजन, मतलब उसके हाँ जी, साथ हाँ जी। ऐसा तो कंपोजिट भी हो सकता है, सारी एसेट्स का टोटल काउंट थोड़ी होगा इसमें, ओनली फॉर दैट इसका एसेट। कंपोजिट भी तो हो सकता है, सबका टोटल 50 लाख रुपए। हाँ हाँ, टोटल टोटल एस्केपमेंट 50 लाख होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, यस सर, सब मिला के। उसको जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो एसेट होगी उसका 50 लाख होगा ना, ये थोड़ी मेरी पूरी बैलेंस शीट का आइटम का टोटल 50 लाख। इनका जो इसमें इनकम लिखा हुआ है, एस्केपमेंट, इनकम एस्केपमेंट 50 लाख से ज्यादा होनी इनकम एस्केपिंग का जो उसका इन एसेट्स में से किसी भी से रिलेटेड होगा इनकम एस्केपिंग, वो उस एसेट्स का ही काउंट होगा ना केवल 148 देने के लिए। सर ये पहले भी था सर्च के केस में। हाँ आप समझो ना, सर्च पे किसी के यहाँ गए, प्रॉपर्टी के कागज मिले, मैं तेरे बुक्स में कहीं थी नहीं, 10 साल तक के जा सकते हैं। पहले भी था, अभी भी है। वो सर्च वाला इसमें मर्ज कर दिया ना सर, रीजन वो यहाँ पे आ गया। केस में पिछले 10 साल तक का वो खोल सकते हैं हमारे केस। यस सर, पहले भी वह सर्च में सर पहले भी बोल सकते थे। सर्च में भी 6 साल का होता था ना, उसमें भी 10 साल का पीरियड था, इन केस एनी एसेट इज फाउंड, अभी भी है। सर ऐसा कोई फॉर्मेट आपने कोई ऐसा स्टैंडर्ड बना रखा हो जैसे कि कोई चीज छूट ना जाए, जो रीजन टू बिलीव हम क्वेश्चन करते रेज करते हैं, तो उसका कोई एक फॉर्मेट हो, या फिर ऑब्जेक्शन करते हो जैसे पेनी स्टॉक और ये आजकल आ रहे हैं, तो इनका कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जिससे कोई चीज छूट ना जाए हम लोगों से, ऐसा कोई आपने बना रखा हो तो वो अगर आप शेयर कर सकते हो। सर वो बेसिकली ना डिपेंड करता है कि उसका केस टू रीजन केस क्या है। तो, हाँ केस टू केस डिपेंड तो करता है, लेकिन फिर भी जैसे नॉर्मली अब नहीं, चल रहा है पेनी और ये चल रहा है उसी से रिलेटेड। नहीं, अब तो सर आ नहीं रहे ना, अब तो आज के डेट में तो अभी रीजन तो दिया ही नहीं है। हाँ रीजन का तो कोई प्रोसेस आ ही नहीं रहा। हाँ, अभी तो क्या है कि असेसी जैसे हमारे कुछ एक आया, हमने कहा क्या भैया इसको तो सब कुछ तो डिक्लेयर कर रखा है, प्रॉपर्टी बेची थी और प्रॉपर्टी हमने रिटर्न में डिक्लेयर कर रखी है। उनको कुछ इस बार के जो 148 आए हैं उसमें से कई तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी तो पता ही नहीं ना सर कि किसकी वजह से आए वो। हाँ पता ही, असेसी को तो देखो पता है। हाँ वो तो पता होता ही है, असेसी को तो सब पता होता ही है वो रीजन कोई ना कोई तो होता ही है। उसको पूरा पता रहता है कि पूरे आईटीआर के अंदर कौन से एक ऐसा आइटम है जिसमें गड़बड़ हो सकती है। हाँ वो बताए नहीं हमको, पता लगे। सही बात है, सही बात तो यही है। राइट राइट। ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ये आएगा तो बहुत अच्छा है। आ गया वैसे तो एक्ट में, नोटिफिकेशन आने दो कि मेरे पास ऑप्शन रहेगी टू गो फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, जहां मैंने आईटीआर 50 लाख से नीचे की भरी है और एडिशन 10 लाख से ऊपर की है। हाँ, उस केस के अंदर जो कवर नहीं होगा मेरे सर्च के केसेस या फिर जो मेरे 1990 ये इंटरनेशनल टैक्स वाले केसेस वो कवर नहीं होंगे, और जहां पर डिटेंशन, प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन है वो वाले कवर नहीं होंगे। एंड of course they will have the power to reduce or waive penalty. I am waiting for this rules to come for this. अगर ऐसा कुछ हुआ कि retrospective भी हुआ तो ये permanent VS हो गया, विवाद से विश्वास तक। So let us see what it comes when it is formed. So it would be really very helpful for each and everyone. Right? मैं सर अभी अब और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं लूंगा, क्योंकि मैं अब साइन ऑफ करना चाहूंगा बिकॉज मेरे को दूसरी जगह जाना। एक्सपर्ट्स पैनल का सबको पता ही है, कोई भी साइन अप करके कर सकता है। 26,000 से ऊपर अब आंसर्स हो गए बाय मोर देन 115 एक्सपर्ट्स। एंड दिस प्रेजेंटेशन अभी कुछ एक मेंबर्स ने कहा आई विल अपलोड ऑन दिस वेबसाइट एज वेल एज दिस फ्री मोबाइल ऐप लुनावर, दोनों में से कहीं से भी आपके उसका एक्सपर्ट पैनल पे क्वेरी रेज करने का कहां पर है सर? ये है ना क्वेरी रेज करने का, आज का क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन डालें उसके बाद कैटेगरी चूज करें। वहाँ पे साइन अप के लिए कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन वहाँ कुछ और आता है कि पेड। नहीं सर, एक बार आपने साइन अप किया तो आपको एक ईमेल आता है, उस पे एक लिंक है, उसको क्लिक करते हैं आपका अकाउंट एक्टिवेट। अगली बार आपको लॉगिन करना है, अच्छा उसी आईडी और उससे लॉगिन करने के बाद आप क्वेश्चन पूछो। अच्छा, मैंने किया था लेकिन मैं कर नहीं पाया क्वेश्चन रेज। नहीं सर, 26,000 से ऊपर सर आंसर्स हैं। ये एक्सपर्ट पैनल वाले भी मेरे को लॉगिन www.expert पे जाकर के और लॉगिन करना है, पर मेरे को मेल में आपका लिंक आ जाएगा, लिंक पे क्लिक करना है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन रेज कर सकता हूँ। उसके बाद तो लॉगिन करके आप क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत ही नहीं।
यहीं जैन साहब, पे एक आज चीज का है कि क्वेश्चन। आपकी जो डॉक्यूमेंट की किताब है ये ऑडिट वगैरह के लिए, जिसमें हाँ। ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑल, इतनी अच्छी किताब है, हम सर वो हार्ड कॉपी में है, सॉफ्ट में नहीं हो सकती है? क्योंकि अभी कभी कोई मैटर हमें करवाना है और वो सब टाइप भी करवाना पड़ेगा कुछ। भाई आपको पता है पब्लिशर इश्यूज है, हाँ, अच्छा। दीज आर ऑल पब्लिशर इश्यूज। नहीं बट सर सीडी वगैरह और पेन ड्राइव तो आने लगी है आजकल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है? अबे मैंने बोला है तो है सर, 4-5 सालों से कह रहा हूँ पब्लिशर को, हाँ। बट वो उनके ऊपर। ये सर लक्ष्मी नारायण जी का एक क्वेश्चन है, असेसमेंट डन अंडर सेक्शन 148 ऑलरेडी, कैन दे इश्यू 148 अगेन फॉर द सेम असेसमेंट ईयर? क्या है? असेसमेंट डन अंडर असेसमेंट 148 में ऑलरेडी हो चुका है, क्या वो दोबारा 148 का नोटिस इश्यू इसी असेसमेंट ईयर के लिए कर सकता है? हाँ कर तो सकता है, कोई मना ही नहीं है, उल्टा अच्छा है, आपको 2 बार फीस देने को कह रहे हैं, हो सकता है सेम इशू ही हो। सेम इश्यू पे कर सकता है सर कर तो सकता है, छोड़ो ना सर, वो उनको तो नहीं पता ना, अभी तो कंप्यूटर से करे जा रहे हैं, पिछले वो देखा नहीं, कुछ किया ही नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है। कर तो वो कुछ भी सकता है, ऑफिसर है, सीट में बैठा हुआ, कुछ भी कर दे। अच्छा है, सेम रीजन हो, आप बोलोगे जी ऑलरेडी है तो चेंज इन ओपिनियन बाहर। देखिए हरमीत सिंह जी का क्वेश्चन है, 5% कैश इश्यू इज ओनली केस ऑफ इन केस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशनल लिमिट इज 50 लाख ओनली। 5% इज ओनली इन बिजनेस, प्रोफेशनल के लिए कोई कैश की कहानी नहीं है, उसके लिए अभी भी 50 लाख की लिमिट है। और कोई ये चैट में तो क्वेश्चन होंगे नहीं थे, ये सारे आपने साथ ही साथ करते रहे थे आप? हाँ जी, हाँ जी। पीपीटी तो आपने वहां पे डाली रखी है, हाँ जी, वो आप इसमें आ जाएगी, और कोई क्वेश्चन नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी पेशेंट हियरिंग, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर रेजिंग क्वेश्चंस एंड आंसरिंग, so nice of you, thanks a lot, thanks a lot. Thank you sir for such wonderful educative and interactive deliberation. It was really a value addition for all of us on discussion on assessment under section 147 read with section 148 and imported changes in Finance Act 2021. May I request to CA Shyam Sundar Gupta ji for vote of thanks. Thank you, Agarwal ji. I sincerely thankful to CA Pramod Jain sir, learned speakers of the days, for the excellent evaluation and for updation in the recent changes in the Finance Act 2021 and also various changes. I am also thankful to all the participants who spent their valuable time to make this seminar educative and interactive. I would like to seek your permission to conclude today's program. Thank you. Thank you very much sir. Thank you everyone. Thank you sir. Take care, wish you for हाँ आप सबको भी सर बहुत बहुत और सेफ थैंक यू राइट। Thank you sir. ठीक है दादा, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है जी। ठीक है।